یزیدی ذہن کے گستاخ رابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ ہلو السلام علیکم۔ کون صاحب؟ ہلو سرفراز ہے۔ اچھا سرفراز حبیب صاحب۔ جی بھائی کیسے ہیں؟ ہاں میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، بزرگوں کی دعا ہے۔ بتائیے آپ کون بول رہے ہیں؟ ارشد علی قادری بات کر رہا ہوں۔ اچھا ارشد علی قادری۔ آپ کون؟ جی اب تو ابھی نام بولے نا، اچھا سرفراز۔ اچھا اچھا، جی بھائی۔ دیکھو دماغ میرا کتنا تیز ہے، آواز سے پکڑ لیتا ہوں کہ کون سا وہابی ہے۔ نہیں ابھی آپ کے دوست بتائے تو تھے۔ نہیں وہ کیوں بتائیں گے، میں تو آپ آواز کی تو آ آواز سے رہی ہے، پکڑا۔ جو کانفرنس پہ جو ہیں وہ تو بتائیں میرا نام لے کر۔ اچھا بتائیے، میں نے پچھلی بار آپ سے ایک تعریف پوچھی تھی، ایمان کی تعریف، آپ بتا نہیں پائے تھے۔ ایمان کی تعریف؟ ایسے تو بہتوں چیزوں کی تعریف نہیں معلوم رہتی ہے بھائی۔ ہاں بس ایمان کیا ہے وہ ہم لوگ جانتے ہیں، کیا ہے کہ ایمان؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر جو ہے ایمان ہونا چاہیے، ان کے بس فرمودات پہ عمل ہونا چاہیے، قرآن بس و حدیث میں جو ہے بس ہاں اس کے مطابق جو ہے اپنا عقیدہ ایمان بنانا چاہیے۔ اچھا، تو بس اللہ اور اس کے رسول پر اور قرآن حدیث پر ایمان لانا کافی ہے؟ بالکل کافی ہے۔ بس اس کے اور آگے کیا کچھ نہیں ایمان میں؟ الگ سے اور کیا مطلب؟ اب ہم کو تو یہی چیز اگر آپ بتا دیں تو بالکل اچھا ہم بھی مطلب مان لیں۔ وہ 20 دن کے جو کلاس ہوتی ہے اس میں اتنا ہی سکھایا جاتا ہے، میں بھول گیا تھا۔ اہل حدیثوں نے 20 کون دن سا کی دن کلاس جو کی ہے نا، کہاں ہوتا ہے؟ بہار میں اہل حدیثوں نے مدرسہ بنایا ابن تیمیہ کے نام سے، اس میں 40 دن میں عالم بنا رہے وہ۔ ہو رہا الگ الگ کورس ہوتا ہوگا، ہاں عالم تو کو تو میں 40 نہیں بولوں گا۔ نہیں 40 دن کا عالمہ کا کورس کر رہے ہیں۔ عالمہ 40 دن کا کا کورس؟ عالمہ، ہاں عالم کا کورس کریں 40 دن کا۔ اچھا عالم اور عالمہ تو دونوں ہاں مطلب دونوں ہو رہا ہے کیا؟ اور ہاں ہو رہا، دونوں ہو رہا ہے، لڑکیوں کے لیے عالمہ اور عالم کے لیے جینٹس کے لیے عالم۔ اچھا خیر وہ سب چھوڑیے، کیا ہو رہا ہے مجھے تو تو جانکاری کس نہیں کو ہے بھائی، پکڑوں آپ پھر؟ بتا دیجیے۔ آپ نے یہ کہا کہ صرف یہ 4 ہی چیز کافی ہے ایمان کے لیے۔ 4 چیز میں نے کہا، قرآن اور حدیث کہا۔ ہاں قرآن اور حدیث اور اللہ اور اس کے رسول پر وہی ایمان تو لانا بس۔ اللہ اور اللہ کے رسول، یعنی دیکھیے اللہ اچھا جب ہم اللہ کہہ کے رہے رسول نے کیا سکھایا، ایمان کی کیا تعریف بتائیے؟ ہیں، نہیں مجھے یاد نہیں ہے۔ تو پھر حدیث کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ حدیث میں تو ہے یہ تو ہے حدیث ہے تو آپ یاد دلا دیجیے گا تو ہم کو یاد آ نہیں، جائے گی۔ باقی سب سے پہلے تو میں مکتب نے میں حدیث ہی ایمان ہی بتایا جاتا ہے۔ نہیں میں نے جو کہا کہ جو آپ پہلی جو کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، جو علی بے سلمان جو شروع کرتا ہے، اس کو سب سے ہاں پہلے ایمان ہی بتایا جاتا ہے۔ ہاں مگر ٹھیک ہے بعض دفعہ وہ چیزیں کتنی عمر بتا ہو نہیں گئی آپ پاتا کی؟ ہے۔ علی سے لے کر یا تک آپ کو یاد ہے؟ علی سے لے کتنی کر عمر ہو بریا گئی؟ تک کتنی آپ کی علی با تا سا یہ پورا آپ سنا پائیں گے ابھی؟ دیکھیے میں تو سنا دوں گا۔ ہاں تو سنا تو دیجیے، بس اگر میں سنا بھی ایمان کا سنا دوں گا۔ نہیں تو پہلے سوال میں نے کیا نا۔ بس اب آپ نہیں بتا رہے، میں تو بول رہا نہیں ہوں نہیں، اب مجھے صرف اتنا بتا دیجیے کہ الف کی کتنی مختلف آوازیں ہیں؟ الف سے لے کر یا تک الف نہیں بڑھیا ہوتا تک، ہے، الف نہیں ہوتا ہے، الف سے لے الف کر کسی بڑھیا قیمت پہ تک۔ نہیں ہوگا، الف کسی قیمت پہ نہیں ہوگا۔ اب جو دیکھیے آپ جو ہے نا اللہ اکبر، ارے سوال کو جو جناب ہے نا بھاگ الف کر آپ الف ادھر ادھر الف بھاگ رہے ہیں۔ الف کسی قیمت پہ نہیں ہوتا ہے، الف پڑھا ہی نہیں جاتا، الف جو جو آپ جو نے میں نے پڑھا ابھی۔ کہا وہ تو آپ الف ریکارڈنگ کہاں کیے سے ہوئے ہیں نکلتا ہے؟ الحمدللہ۔ الف کہاں سے نکلتا ہے؟ حلق کے منہ کس سے کونے سے نکلتا ہے؟ بھائی۔ فلک کے کس آپ کونے سے نکلتا ہے؟ ارے میرے تو منہ الف ہی کا سے نکلتا ہے مخارج، بھائی۔ الف کا آپ مخارج کہاں سے نکلتا ہے؟ الف کا مخارج کہاں سے نکلتا ہے؟ سنیے اسد لا بھائی، حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے دیکھیے اہل حدیث، ان کو یہ نہیں پتا کہ الف کی آواز کہاں سے نکلتی ہے، آپ کا مخارج کہاں سے سے ادا نکلتا ہوتا ہے؟ ہے۔ میرا تو منہ سے نکلتا میرا ہے ارشد بھائی، آپ کا کہیں اور سے نکلتا ہے لا جہاں سے حول روزہ ولا، ٹوٹتا ہے آپ کا۔ دیکھیے سامع نگرام یہ ہے اہل حدیث، ارے کیا بھائی میں بولا نے تو جائے ان دعوت کو؟ اسلامی ایک سنا تھا کہ آپ الف جب کی باتھ روم کرتے آواز، ہیں جب تو الف کی جو اندر آواز ہے، جب آپ الف باتھ روم کی میں آواز نہاتے کہاں سے ہیں، ادائیگی ہوتی ہے اس کی مخارج کی، اس کو یہی نہیں معلوم ہے، بتائیے جاہل آدمی کو میں جب کیا آپ بولوں؟ باتھ روم کرتے ہیں نہاتے ہیں تو ہاں پھر آپ کے پچھواڑے سے بھی آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں رمضان جو ہے روزہ جو ہے آپ کا ٹوٹنے کا ڈر ہے، ادھر سے پانی چلا جاتا ہے۔ ہو گیا، میں بولوں؟ نہیں مطلب وہیں سے آپ کی آواز نکلتی ہے، میں اہل تو کہہ رہا حدیث، ہوں منہ اہل سے آواز حدیث کا نکلتا ہے بھائی اہل الحمدللہ۔ حدیث کا عالم جرجس تو کہتا ہے روزے کی حالت میں بیوی کو چما چاٹی کر لو روزہ نہیں ٹوٹتا، تو آپ چما چاٹی کرتے ہیں؟
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बोसा ले सकते हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ, बोसा अलग है, चुम्मा चाटी बोलता है वो। भेजू वीडियो। चुम्मा चाटी? हाँ, चुम्मा चाटी कर चाटी सकते का हैं। लफ्ज, चाटी हाँ का लफ्ज हाँ दिखा हाँ सकते हाँ हैं? हाँ 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 हाँ। गलत कहता है, गलत कहता है, डंके की चोट हुक्म पे क्या मैं लगेगा? कहता हूँ गलत। हुक्म क्या भाई मैं लगेगा? मुकल्लिद थोड़ी हूँ हाँ, भाई। तो इसी जो तरीके से वो भी गलत कहता है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ वो गलत कहता है। ओ अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत ओ अच्छी नहीं बात है होता, भाई। पी होता है, ओ नहीं होता, वो वहीं रखो, पी बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, आप तो तुम जाहिल हो ना, गलत को गलत बोल तो रहे हैं। तुम दावत ऐसे आलिम इस्लामी की का इलियास ऐसे अत्तारी कादरी सुनो को आप सुनो गलत बोल रहे हैं। सुनो सुनो या सुनो दावत इस्लामी सुनो, का जो चैनल ये इलियास बयान कर रहा था, आप उसको गलत कह रहे हैं ना। इलियास अत्तारी कोई खुदा है या इलियास अत्तारी कोई वली है जो मैं उनकी बात को मानूं? अगर वो गलती करेंगे तो बिल्कुल हम बोलेंगे वो गलत बोल रहे हैं। अरे तो कोई वीडियो बनाओ यार, ये हाँ, गलत तो बोला तुम है, इतने कोई बड़े वीडियो जाहिल बनाओ। हो, तुमको यही नहीं पता कि इलियास अत्तारी का हर वक्त रद्द होता है गलत बात पर? तुम इतने बड़े तो जाहिल हो। तुमने मौलाना जर्जिस का कहाँ पे रद्द किया है? वीडियो दिखा दो जरा, तुम्हारे आलिम ने किसी ने रद्द किया मौलाना जर्जिस का? वो जाहिल का। मुझे तो अभी तक मालूम नहीं है भाई, जो चीज मैंने फिर बयान की आपको अब वो मालूम खुद है। कहता है, वो खुद कहता है कि जब मैं कलकत्ता गया था तो मुझे चतुर्वेदी की जगह चतुर्वेदी बोला जा रहा था, चतुर्वेदी। अच्छा अच्छा, उसको वो सब चतुर्वेदी छोड़िए बोला भाई। जा रहा जो था मेरा कलकत्ता सवाल में। था, जो मेरा सवाल बस था, हालत खराब हो सवाल गई, पे आइए, हालत गुम मत खराब हो होइए, गई, इधर उधर हो गई गुम मत हालत हो खराब। जाइए भाई। अकीदे पे सवाल था मेरे भाई। पहले इस पे हुक्म लगाओ अकीदे पे मौलाना मेरा सवाल जर्जिस था, पर। भागिए ना मत ना ना भाई। ना 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 ना, पहले जर्जिस पे हुक्म लगाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल जो नाम किए सही तो से लो, उसके बाद नाम सही से लो। क्या नाम? मैंने तो नाम नहीं लिया भाई, अस्तगफिरुल्लाह, तुमने हुजूर मैंने का तो नाम लक़ब सही से नहीं बताया, लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, सही से नाम लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होता, नाम कहाँ लिया? अरे सल्लल्लाहु मैंने अलैहि वसल्लम मोहम्मद नहीं बिन होता। अब्दुल्ला नहीं कहा। अरे जाहिल हो क्या भाई, नाम तुम्हें नाम इल्म है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि ये वसल्लम। नाम नहीं है, ये सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह वसल्लम के क्या होता नबी है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वसल्लम का क्या होता लक़ब है? है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होता है? मैंने ये लक़ब बयान किया, हाँ, तो तुम लक़ब नाम बोल कैसे रहे हो ऐसे भाई। ऐसे लक़ब ऐसे ऐसे किसने बयान किया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने बोला? जो मैंने सल्लल्लाहु अलैहि कहा वसल्लम वो किसने बोला? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कहा। सल्लल्लाहु अगर अलैहि आपको सुनने वसल्लम में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ, अब सही से बोला ना सुनने में तुमने। तो नहीं भाई, मुकल्लिद बन आपको जाओ ना, सुनने में मुकल्लिद बनोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, आपको हाँ, सुनने में डिस्टर्ब तुम हो रहा है। जाहिल हो, जाहिल के मुकल्लिद बन के बैठे हो, जिसको चूतड़वेदी कहा देखिए जाता है, फिर तुम अब ये मुकल्लिद हो। बदतमीजी, अब ये बदतमीजी तो तुम एक कीजिए भाई, नबी का तो ये नाम तो गलत अच्छी बात तरीके से नहीं। लोगे कहाँ तो है मैं तो भाई तुमको चूतड़वेदी बोलूंगा ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम जब इंतकाल किए थे तो आपकी किताब में लिखा हुआ है, कौन सी किताब में? अहमद रजा खान जो कहते हैं कौन सी मलफूजात किताब? आला हज़रत, हाँ। उसमें लिखा हुआ है कि एक आन के लिए, एक लम्हे के लिए मौत आती है, फिर वैसे ही जिंदा कर दिए जाते हैं जैसे पहले जिंदा थे, और उनकी कब्र में उनकी बीवियों को पेश किया जाता है, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। ये अहमद रजा खान लिखा है। इसका जवाब दे दूं? मलफूजात जिल्द 3 सफ़ा नंबर 27। इसका जवाब दे दूं? जवाब दीजिए, क्यों नहीं जवाब शब्बाशी का दीजिएगा? माना क्या होता है? नहीं, मैंने शब्बाशी अभी नहीं कहा, पहले ऊपर अभी आइए। तो तुमने बोला शब्बाशी। मैं शब्बाशी बोला, पहले ऊपर आइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लम्हे के लिए मौत आती है, फिर वैसे ही जिंदा कर दिया जाता है। ठीक है, सही बात है। ये तो हदीस में है बुखारी की। क्या हदीस है? पहले आप अपनी बात पूरी करो। तो पढ़ी नहीं तुमने तो मुझे बतानी पड़ेगी ना हमको। मेरा तो ये अकीदा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तुम्हारा अलैहि ये वसल्लम, अकीदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अकीदा सहाबियों का है, वहाबी का कभी हो ही नहीं सकता। चलो आगे पढ़ो। सहाबी का ये अकीदा क्या? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ये कह रहे थे, अभी पेश करूंगा मेरे भाई, अभी पेश करूंगा मैं, बुखारी से पेश करूंगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कह रहे थे कि मैं तलवार निकाल लूंगा, मैं तलवार से गर्दन उड़ा दूंगा, जिसने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात कर गए हैं या वफात नहीं, कर गए जिसने हैं, नबी को मुर्दा कहा, जाहिल आदमी, हदीस पढ़ो जाके। तो मैं उसका गर्दन उड़ा दूंगा। हाँ, जिसने मेरे नबी को मुर्दा कहा, जिसने मेरे नबी को मौत आ गई, जिसने कहा, मुर्दा जिसने कहा, हाँ, तो उसके ऊपर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा, ये जिसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पढ़ो, हदीस, अपनी मंतिक मत चलाओ, हदीस पढ़ो। नहीं, हदीस के, अब हदीस तो मैं खोल कर नहीं बैठा हूँ। तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने जानबूझ के मेरी तरफ झूठ मंसूब किया, अपना ठिकाना जहन्नम कर। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये पता लगा कि हजरत उमर फारूक तलवार निकल गए, तो उन्होंने हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में उनको बुलाया और उनको समझाने के लिए कहा कि अल्लाह के रसूल वफात पा गए, ठीक है, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे नबी को दोबारा मौत तारी ना होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? मेरे नबी दोबारा मौत तारी ना होगी, उसके बाद मतलब अल्लाह के रसूल जिंदा है। भाई डंडी मत मारो, भाई डंडी मत मारो। और क्या खुतबा? यही तो खुतबा है, खुतबा देते हैं, यही खुतबा देते हैं।
जिसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल नहीं किए हैं, हाँ उसने जिसने कौन सी हदीस में ये, कहाँ है ये? कहाँ कौन सी हदीस में है ये? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस भेजो, इबादत हदीस करता भेजो, था, हदीस बुखारी भेजो, की हदीस है, हदीस लाओ जो लाओ, मोहम्मद भेजो भेजो रसूलुल्लाह भेजो की भेजो। इबादत करता था तो ये इबादत जान करता ले था? कि नबी को मौत आ गई है। इबादत करता था? जी इबादत करता था, लफ्ज है इबादत हदीस करता लाओ, था। हदीस लाओ, हदीस लाओ। अब और जमशेद जो भाई तुम से में हदीस से, लो, और फिर उसके बाद जमशेद कहते भाई से हैं, हदीस लो, सुन जमशेद लो भाई से पहले हदीस लो, पूरी हदीस हदीस लो, सुन लो, हदीस पूरी पहले हदीस हदीस सुन भेजो, लो भाई, हदीस भेजो, पहले भेजो, पूरी हदीस सुन लो। पहले और भेजो। जो तुम में से मोहम्मद रसूलुल्लाह की इबादत जो करता था वो जान ले कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफात हो गई है, मौत आ हाँ, गई है। और जो और तुम में आगे? से अल्लाह की इबादत करता था तो ये हाँ। जान ले कि अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। अच्छा, तो सहाबा हुजूर की इबादत करते थे, माज़अल्लाह। हाँ, अब यहाँ पॉइंट अस्तगफिरुल्लाह, वाली बात हुई, क्योंकि वो अस्तगफिरुल्लाह। बरेलवी नहीं थे, कौन से वो ये सहाबा थे, कौन से सहाबा थे जिसने हुजूर की इबादत की थी? जरा नाम बताओ एक जिसने ये सहाबी का। कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मौत नहीं हो कहाँ सकती लिखा है, है ये तलवार कहाँ निकाल ली कहाँ उसने, कहाँ लिखा है ये, कहाँ लिखा है? जिसने तलवार कहाँ, अबे निकाली। कहाँ लिखा है ये? कौन सी हदीस में है? बुखारी में तो अबे नहीं है? भाई हदीस बयान कर रहा हूँ यार, बुखारी क्या में है? तुम तुम हदीस ही नहीं पढ़ो, तुम अपनी मंतरी लगा रहे हो अभी उसमें। हदीस में अभी ये तो है ही तुम नहीं। अभी तो तुम अल्लाह बोल के कर गए। रसूल सल्लल्लाहु, सुनो इधर सुनो, हजरत उमर अबू बकर, रज़ियल्लाहु ने क्या कहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा उमर कि नहीं, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या अल्लाह के कहा? रसूल इंतकाल फरमा गए, लेकिन अल्लाह की कसम उनको दोबारा मौत तारी ना होगी। नहीं, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या कहा पहले? जो मेरे नबी को मुर्दा कहेगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हाँ, ये सही बात। और उसके बाद और में हजरत अबू क्या बकर कहा अबू सिद्दीक बकर ने कहा, सुनो सुनो, हजरत अबू बकर हाँ सिद्दीक ने अपने दो अकीदे बयान किए। हाँ एक तो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच से इंतकाल करेंगे। दूसरा अकीदा ये कि हाँ। अल्लाह की कसम मेरे नबी को दोबारा मौत ना आएगी। अच्छा, और जो मैंने जो अल्फाज यूज किए कि जो अरे तुम में तो से तुम्हारे मोहम्मद अल्फाज रसूलुल्लाह को की गोली बात मार दी करता ना था। मैंने, तुम्हारे अल्फाज उसमें अच्छा, है ही नहीं, जो तुम मंतिक घुसेड़ नहीं रहे हो उस मानते हदीस हो, में। इनकार उसमें करते हो अल्लाह हदीस के से। सुनो, हजरत अबू बकर ने फाइनल कर दिया ना मेरे नबी को दोबारा मौत तारी। इसका मतलब यह अच्छा है तो कि मेरा भाई नबी पहले बरज़ख ये में तू जाते ही तस्दीक जिंदा कर है। भाई। सुनिए, जाते ही भाई जिंदा, उनको अरशद दोबारा अरशद मौत नहीं रजा आ सकती। कादरी, अरशद रजा कादरी साहब, ये जमशेद अली बुखारी की जो कादरी, हदीस है कि जो जमशेद तुमने अली से कादरी। जमशेद अली कादरी, पहली बात तो तुमको हदीस पढ़ना नहीं आ तो रहा है, जमशेद अली तुम अहले कादरी, हदीस बने बैठे हो। जमशेद अली कादरी जो तुमने ना पढ़ा मारो है भाई, वो हदीस में अगर तुमने मारे दिखा ना दिया, जो मारो भाई, तुमने तुमने अल्फाज हदीस बोले हैं, को सुनो ठुकराया, इधर सुनो, तुम मुनकर इधर हदीस सुनो, बन ए गए हो मुनकर, अभी। ए मुनकर, ए अभी मुनकर सुन, मुनकर बरेलवी ए से मुनकर मुनकर, हदीस भी बन गए भाई। मैं जमशेद भाई, जमशेद भाई, जमशेद हाँ भाई, जी। जमशेद अली इसने कादरी। अगर हदीस में ये मुझे दिखा दिया, हाँ हजरत अबू हाँ, बकर भेजो सिद्दीक ने भेजो। ये कहा कि जो मेरे नबी की इबादत करते थे, अगर इसने इस हदीस में दिखा सरफराज, दिया, खुदा की कसम सरफराज मैं भेजो। तौबा करूंगा, नहीं तो इस पर अल्लाह की लानत हो। आमीन बोलो, आमीन बोलो तो, जमशेद भाई, तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा आमीन अभी बोलो। अभी। ये जाहिल को से हदीस लो, उसमें ये दिखाएगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये फरमाया कि जो मेरे नबी की इबादत करता था, मेरे माज़अल्लाह, नबी की, अस्तगफिरुल्लाह। मैं लफ्ज में ये नहीं दिखाऊंगा कि मेरे नबी की इबादत। देख लो जाहिल जो आदमी, तुम मतलब में से सहाबी मोहम्मद हुजूर को रसूलुल्लाह की, माबूद समझते थे। देख लो जाहिल को। जो तुम में से मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात करता था वो ये जान ले अब कि देखो, मोहम्मद अब अल्फाज रसूलुल्लाह को बदल रहा है, वफात है। अब अल्फाज बदल अरे रहा है जमशेद भाई, ओ तो अल्फाज अल्फाज में बदल तो रहा है। सेम टू सेम पहले कह रहा चाहिए। था इबादत करता है। हदीस क्यों नहीं भेज देते हो? हाँ हदीस भेज दो आप, हदीस भेजो हाँ, ठीक 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 जल्दी, ठीक अभी ठीक, मैं भेजो, अभी अभी भेजो, भेजता हूँ, भेजो जल्दी भेजो, अभी भेजता हूँ, अभी अरे भेजता भेजो उल्टा भेजो सीधा भेजो। पढ़ने से अच्छा है हदीस भेज दो। उल्टा सीधा, इसको खुद याद ही नहीं है हदीस। जा कॉल अब काट इसकी दिया। शरह सुनिए जमशेद भाई, हाँ कॉल काट इस दिया। हदीस की, हाँ इस हदीस की शरह में इमाम हजरत फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ से दो अकीदे बयान किए। एक तो ये कि अल्लाह के रसूल जिंदा हैं, उनको दोबारा मौत नहीं आ सकती, ठीक है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्सा ठंडा करना था, इसीलिए वो खुतबा दिया, लेकिन आखिरी में अपना अकीदा बयान कर दिया। अब ये जाहिल अहले हदीस हमें हदीस बताएंगे। पहले कह रहा है हजरत अबू बकर ने फरमाया कि तुम अगर हुजूर की इबादत करते थे, माज़अल्लाह तक सहाबा हुजूर की इबादत करते थे। अरे वो तो बात हुआ नहीं, उसका जो दादी मर गई। अरे जाहिल को लेके आओ ना अभी लाइट, मेरा पहली बात तो नाम सुनते इसको बुखार छुड़ जाएगा। हाँ कट गया, काट दिया वो। हदीस भेजो। हाँ ये भेजा है गूगल से निकाल के। हदीस नंबर, बुखारी के हदीस नंबर कितना है जमशेद भाई? जमशेद भाई, हाँ हाँ बुखारी की हदीस नंबर कितनी है बता दीजिए। क्या है? 1241 है ना? जमशेद भाई बताइए ना, बुखारी की हदीस नंबर कितनी है? अरे खामोश तो रहो यार। हाँ बताओ जमशेद भाई। 1241 से है ना? चलो लाओ, मुझे भेजो, हाँ। भेजो मुझे भेजो, भेज भेजो दिया भेजो, आपको।
अच्छा पढ़ो, हदीस बेचारे ने पढ़ो, अपने ऊपर लानत भी कर ली हदीस है भाई, पढ़ो, हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो, क्या बोला जाए। हदीस पढ़ो, मैं तो आमीन नहीं कहूंगा यार, हदीस अल्लाह पढ़ो, ना हदीस करे पढ़ो, लानत हो हदीस पढ़ो, बेचारे के ऊपर। हदीस पढ़ो, अरे हदीस हदीस पढ़ो मैं ना। पढ़ देता हूँ, आप जब इतना पढ़ो, दरख्वास्त पढ़ो, कर पढ़ो, रहे हैं। जल्दी पढ़ो। मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ तो ठीक है। जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर से जो सनह में था, लफ्ज बाय लफ्ज बाय लफ्ज, लफ्ज बाय लफ्ज, लफ्ज ब लफ्ज पढ़ जो रहा हूँ उसमें भाई, लिखा है, हाँ लफ्ज बाय लफ्ज पढ़ो, जो लिखा वही मैं पढ़ रहा हूँ भाई, हाँ टोको पढ़ो, नहीं। पढ़ो। अबू अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से जो सनह में था, अरे घोड़े मैं कह पर रहा हूँ लफ्ज बाय सवार लफ्ज पढ़ो, होकर। ऊपर से पढ़ो लफ्ज अरे बाय भाई, लफ्ज, अरे भाई मैं पढ़ रहा हूँ तो यार, नहीं क्या लफ्ज बाय लफ्ज मतलब। पढ़ो ना, तो कहीं से तुम पढ़ोगे उठा करके, ऊपर से पढ़ो। भाई जमशेद भाई, हेलो, हाँ पढ़िए ना। जमशेद भाई बोलिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें यार, मैं पढ़ रहा हूँ ना। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, अबू बकर, वहां से पढ़ो। जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, हम्म, तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से जो सनह में था, घोड़े पर सवार होकर आए और उतरते ही मस्जिद में तशरीफ ले गए। फिर आप किसी से गुफ्तगू किए बगैर आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में आए, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाश मुबारक रखी हुई थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्द उबरा यमन के बनी हुई धारीदार चादर मतलब से ढांक दिया गया था। फिर आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खोला और झुककर उसका बुसा लिया और रोने लगे। आपने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला दो मौतें आप पर कभी जमा नहीं करेगा। अब यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक बयान जाओ, कर लेने के बाद पहले रुक जाओ, पहले रुक जाओ, पहले यहीं पे रुक जाओ। दो मौतें कभी तारी नहीं करेगा, एक हो चुकी दूसरी नहीं करेगा, इसका मतलब जिंदा हैं आप। अब आगे चलो। इसका मतलब जिंदा है। बिल्कुल, यहाँ से आपने फरमाया दो मौतें तारी कभी नहीं करेगा, एक हो चुकी और दूसरी हाँ। आप जिंदा हैं। आगे चलो। मतलब फिर मौत आई क्या? दो मौत नहीं करेगा ना अल्लाह, एक तो कर दी आपके ऊपर तारी। हाँ हाँ। अब आप नबी अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, दूसरी मौत नहीं तारी करेगा, इसलिए आपके ऊपर दो मौतें नहीं हो सकती। आगे चलो। सहाबा ने नाउजुबिल्लाह ऐसे ही मतलब जाहिल आदमी, तो हजरत अबू बकर अपना अकीदा बता रहे ना कि आप पे दो मौतें कभी तारी नहीं हो सकती, एक तो हो गई दूसरी नहीं, क्योंकि बरज़ख में आप जिंदा हैं। दो मौतें तारी नहीं हो सकती, ये हदीस है। हजरत अबू बकर का फरमान है कि आप पर अल्लाह ताला दो मौतें तारी नहीं कर सकता। एक हो चुकी है, एक हो चुकी है, दूसरी नहीं होगी, दूसरी नहीं होगी, इसका मतलब आप जिंदा हैं। हजरत अबू बकर, ये तासुस, इसकी हदीस की शरह पढ़ो। चुप 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 चुप, इस हदीस क्या बेवकूफ़ी है। चलो ठीक है, इस बेवकूफ़ी के मैं ऊपर नहीं बोलूंगा। किसी आदमी को अगर मैं बोलूं एक लड्डू मिल गया, दो लड्डू तुमको नहीं मिलेगा, इसका मतलब एक लड्डू मिला है, क्या बेवकूफ़ी है। जिंदा है कहाँ से हो गया? अल्लाह के नबी को मौत आई है, ये साबित हो रहा है इससे। जहालत होती है भाई। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इमाम हजर फरमाते हैं इस हदीस की शरह में कि दूसरी मौत से मुराद नबी अलैहिस्सलाम की बरज़ख की मौत है। चुप, तेरे कहने से होगा? हदीस को तुझसे समझूंगा? अरे तो जाहिल आदमी, हदीस तुझसे थोड़ी समझूंगा। हजरत अबू बकर ने यहाँ फरमा दिया कि तुम पे दो मौतें कभी तारी नहीं हो सकती। इस हदीस की शरह पर जाके इमाम हजर फरमाते हैं कि इस दो मौत से मुराद यह है कि हुजूर की एक वफात हो चुकी लेकिन दूसरी नहीं हो सकती, आप जिंदा हैं। तुमने लानत से अपने ऊपर। देख लो जमशेद भाई, देखो कैसे भाग रहा है। यहाँ मैंने क्या फरमाया था हजरत? अब आगे पढ़ो इस हदीस को, आगे पढ़ो। मैंने यहाँ तुमको साफ बताया था शुरू में कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, आप पर दोबारा मौत तारी नहीं हो सकती, मतलब दो मौतें आपको नहीं हो सकती। हाँ, मैं तो बात बोल रहा हूँ। हाँ, तो दूसरी मौत क्या है? दूसरी मौत कहाँ है? दूसरी मौत नहीं आएगी। सलाम मारूंगा चप्पल निकाल के मुंह पे, जाहिल कहीं का। नबी अलैहिस्सलाम जिंदा है बरज़ख में, दोबारा मौत उन पर नहीं आ सकती, तो उनको मुर्दा कैसे कहेगा कोई? गधा कहीं का। मौत नहीं आ सकती है। तो फिर मुर्दा कैसे हुए? तो मुर्दा कैसे हुए? इसी के ताल्लुक से हजरत उमर ने फरमाया कि जो मुर्दा कहे उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, गधे की औलाद। अरे जो साले गधे। अरे भाई तो बता रहा है ना उसमें। चुप, गधा कहीं का। हदीस तो अपनी तरफ से पढ़ता है। क्या जमशेद भाई यही लेकर आए हो क्या? यही गाली गलौज करने वाले को लेकर आए हो? तो तुम जैसे गधे को मैं क्या बोलूं? देख लो जमशेद भाई, अभी मैंने क्या बोला था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अकीदा वाज़ेह किया था
کہ تم پر دوبارہ موت طاری نہیں ہو سکتی. تو یہ گدھا کیا بول رہا ہے اس حدیث میں کہ اب حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جو حضور کی عبادت کرتے تھے, اس میں کہاں لکھا ہوا حضور کی عبادت کرتے تھے؟ نہیں اس میں جمشید علی اس میں تو قادری نہیں ہے لکھا ہوا, اس میں تو نہیں ہے لکھا ہوا. جمشید علی قادری پڑھو صاحب, آپ پڑھو پڑھو پڑھو. ارے اس میں جو بھیجا ہے نا حدیث, اس میں لکھا ہوا ہے. ایک منٹ پڑھو. تو حضور کی عبادت کون کرتا تھا؟ صحابی. وہاں سے صحابی مراد ہے. اس نے بولا ہاں صحابی کرتے تھے. وہ وہاں سے مخاطب, وہاں سے صحابی کی طرف مخاطب نہیں ہے. حضور کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور کو خدا جانے, وہ مخاطب ہے. جو حضور کو زندہ مانے, جو یہ مانے کہ نبی کو وفات نہیں ہوئی ہے. ہاں, تو جو نبی کو ابھی زندہ مانے, ابھی وفات نہیں ہوئی ہے, اس کے تعلق سے. جیسے بریلوی مان رہا ہے. تو اب جاہل آدمی, حضور تو انتقال کر گئے, انتقال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ انتقال کا معنی انتقال ہوتا ہے. وہ برزخ میں چلے گئے. کیا انتقال کا معنی کیا برزخ ہوتا ہے؟ انتقال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا. ہاں, تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کو مردہ کہو گے تم؟ موت اسی کو کہا جاتا ہے. مارو سالے منہ پہ چپل نکال کے, منہ پہ دھڑا دھڑ. ارے کس نے لیا یہ عقیدہ؟ غلط یہ دیتے ہو. ابھی تمہاری آگے کس نے؟ کھولو پڑھو 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 پڑھو. تو اللہ ابو بکر آگے کہتے ہیں کہ ماں باپ قربان ہے اللہ کے نبی, اللہ دو موتیں آپ پر کبھی جمع نہیں کرے گا. ایک موت, دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا. ایک تو ہو چکی, دوسری نہیں کرے گا. آگے چل آگے چل. تو سوائے ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی, تو آپ وفات پاتی. دوسری کلیئر کر دی. دوسری اب دوسری نہیں آ سکتی ہے. یہی تو پہلے تو دوسری کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ ارے ایک ہی موت ہوتا ہے نا سب کو, انسان کو ایک ہی موت آتی ہے. تو تم انتقال کو مردہ کیسے کہہ رہے ہو؟ کیا جاہل انسان ہے. تو تم جاہل انسان ہو, تم ہو جاہل انسان, میں تھوڑی ہوں. بھائی پوری حدیث پڑھنے تو یار. اللہ کے نبی حدیث پڑھو. سنو اس حدیث کو پڑھو اور پھر اس کی شرح پڑھنا امام حضرت کلانی کی. چلو. تو حضرت خبر دی, اگر تم نے اس کی شرح نہیں پڑھی تو جوتا سے ماروں گا ابھی تمہیں. جو آپ کے مقدر میں تھے, جو آپ وفات پا چکے. ابو سلمہ نے کہا مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب باہر تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت لوگوں سے کچھ باتیں کر رہے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں مانے. پھر دوبارہ آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں مانے. آخری حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا تو تمام مجمع آپ کی طرف متوجہ ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اما بعد, اگر کوئی شخص, یہ بات کلیئر ہو رہی ہے بھائی, اگر کوئی شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی, اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ باقی رہنے والا ہے, کبھی وہ مرنے والا نہیں. یہاں سے دو موازنہ کر اب اس کی شرح پڑھو, اس حدیث کی شرح پڑھو, اس حدیث کی شرح پڑھو. میں حدیث کی شرح حدیث سے دیتا ہوں. شرح پڑھو, شرح پڑھو. سنو یار, امام حضرت اسقلانی کی شرح پڑھو. ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی. شرح پڑھو. ہاں شرح پڑھو. ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی. شرح پڑھو, اس کی شرح پڑھو. اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ باقی رہنے والا ہے, کبھی مرنے والا نہیں. اللہ پاک نے فرمایا, قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں اور بہت سے رسول اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں. ہو گیا. الشاکرین جو لفظ ہے وہاں تک پڑھا. ہو گیا نہیں بھائی, سن لو. ہاں چلو پوری کر لو. بریلوی صرف احمد اللہ خان. ارے پوری کرو. بریلوی کی طرح چلاؤ مت. پوری پڑھو. حدیث چاقو لگ رہا ہے, چاقو سینے پہ. پوری پڑھو نا, ابھی تمہارا میں چاقو نکالتا ہوں. چاقو لگ رہا ہے. پڑھو آگے پڑھو. ہاں, شاکرین تک جو سورہ آل عمران آیت نمبر 144 ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 144 جو ہے اس کو پڑھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے, اور آپ نے آیت تلاوت کی. قسم اللہ کی ایسا معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آیت کی تلاوت سے پہلے جسے لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا
یہ آیت بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں اتاری ہے. آپ تمام صحابہ نے یہ آپ سے سیکھ لی، پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہی آیت تھی، سب نے یہی آیت جو ہے بیان کر کر، مطلب یہ آیت بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سب سارے لوگ بیان کر رہے ہیں. اب بتاؤ، اب یہ بتاؤ، رسول اب سنو، ان کو اب موت سنو، بھی آ سکتی ہے، اب بڑبڑاؤ شہید بھی مت، ہو اب بڑبڑاؤ مت، اب سنو. اللہ جمشید بھائی، اس نے کہا کہ رسول شہید کر دیے جا سکتے ہیں، اس نے منہ سے ابھی بولا ہے، دھیان رکھیے گا اس بات. جی ہاں اب سنیے، قرآن آپ مجھے یہ بتائیے. ارے یار سنو سنو سنو، جاہل آدمی، اے جاہل آدمی، جاہل آدمی اس میں سنو، لکھا ہوا ہے سنو، کہ یہ جاہل نبی آدمی اگر سنو. یہ آپ نبی بولنے کو دو گے موت آ مجھے؟ جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے، کیا جہالت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب یار مجھے اللہ بولنے کے دو گے؟ اللہ کے کہنے پہ تم سوال مجھے اٹھا رہے ہو بولنے یار، دو گے؟ کتنا اب بولنے، گستاخ ہو. اب بولنے دو گے؟ میں بولوں؟ گستاخ ہے، اب میں بولوں گستاخ تمہیں؟ میں نے بولتے بولنے ہیں، دیا خاموشی سے؟ اللہ کی تفسیر کر رہے ہو تم. اب میں نے تم کو خاموشی سے بولنے دیا نا، میں بولوں؟ اب تم کو سنو ابھی چپ تفسیر چاپ سے. سننا اب تم تفسیر سنو، سناؤ، اب تم سنو چپ چاپ سے، خاموشی کے ساتھ جو میں تفسیر بولنے سنو جا رہا گے، ہوں. آپ سنو، تفسیر سننے کی قوت نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے بخاری کہ کی حدیث سینے پہ لگی، تفسیر بھی سینے پہ جمشید بھائی لگے گی. دیکھو بولنے ہی نہیں دے رہا، میں نے پورا سنا نا چپ چاپ ارے بھائی خاموشی سے. شانت رہو گے اب. ابھی تو بولے تھے بھائی جمشید بھائی، ابھی بولا خاموش. تھا نا کہ تفسیر بھی نہیں بتا. ابے بات کر رہے جاہل ہیں. آدمی، تفسیر نہیں ہوتی، حدیث کی شرح ہوتی ہے. اچھا خاموش سرا ہو ہی جاؤ، مان لو. اب خاموش ہو جاؤ، اب خاموش ہو جاؤ. دیکھو جمشید بھائی، چلو اس نے یہ کہا کہ رسول کو شہید کر دیا جاتا ہے. جاہل کو یہ نہیں پتا کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو حدیث اس نے پڑھی ہے، یہ حدیث ہے متشابہات. پہلے اس چپ، کا جواب آل پہلے عمران آیت نمبر چپ، پہلے 144 چپ. میں ہے. اللہ اچھا، تعالیٰ نبی بیان کس کر کو کہتے ہیں اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی اللہ بڑا ہوتا تعالیٰ ہے نے یا رسول بیان بڑا کر ہوتا دیا. ہے؟ میں کیا پوچھ جو رہا ہوں، نبی تمہارا بڑا ہوتا ہے، رسول کبھی شہید نہیں ہو سکتا. جو نبی شہید تمہارا ہو سکتے ہیں، رسول جو کبھی شہید تمہارا نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا ہے. جاہل آدمی سن، رسول کبھی شہید نہیں ہو سکتا، نبی شہید ہو سکتا ہے. یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، شہید کر دیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، زندہ اٹھا لیا گیا. تجھے رسول اور نبی میں فرق نہیں معلوم ہے جاہل، تو کیسا گھامر اہل الحدیث ہے؟ اب سن، اس حدیث کی شرح میں امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث متشابہات ہے، اور متشابہات سے عقیدہ بنانا حرام، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ اس حدیث سے دو عقیدہ ابو بکر صدیق نے دیا. ایک تو یہ کیا بول رہا ہے، نعوذ باللہ پڑھ رہا ہے. امام دو حضرت باتوں میں اسقلانی رحمۃ استغفر اللہ علیہ میں نے فرما، کہا. سنو، امام حضرت اسقلانی جھوٹے ہو رحمۃ بھائی، اللہ تم علیہ نے، جھوٹے ہو یار. ابھی تو تم نے اپنے دیکھو اوپر جمشید لعنت بھائی بھیجی. بولنے نہیں دے رہا ہے، جمشید بھائی بولنے نہیں ارے دے رہا ہے. ارے شانت رہو یار سرفراز. شمشید بھائی اس نے الفاظ استعمال کیا تھا کہ صحابی، حضور کی جو صحابی عبادت کرتے تھے ان کے لیے. اب یہاں فرما رہا ہے کہ جو یہ صحابی ریکارڈنگ ہے، عبادت کرتے یہ تھے، ریکارڈنگ ہے. اگر جھوٹوں پہ عبادت اللہ کی کرتے لعنت. تھے، یہاں پر تم نے اگر لعنت لگایا، اس کی نے ہے اگر بھائی نہیں اپنے لگایا اوپر. تھا، اس نے اگر نہیں لگایا تھا جمشید بھائی. جمشید یہاں بھائی پر اپنے ہے لعنت کہ کی اگر لعنت پہ تم آمین کہیں حضور کیا کی جمشید بھائی. عبادت ارے کرتے شانت تھے، رہو، اس نے ریکارڈ کہا ہو تھا. رہا ہے، سب پتہ چل جائے گا. دیکھو جمشید بھائی، اس نے پہلی ریکارڈنگ سن لینا. اس نے کہا تھا کہ جو صحابی رسول کی عبادت کرتے تھے اس کے تعلق سے حضرت ابو بکر نے فرمایا. یہاں حضرت ابو بکر نے اگر لگایا ہے. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے اگر یہ نہیں تم کہا. حضور کی صحابی عبادت کرتے تھے تو صحابی سمجھ لو کہ وہ صحابہ کا وفات پا عقیدہ گئے. تو الحمدللہ صحابی حضور کی الحمدللہ عبادت کر صحابی کا سکتے ہیں کبھی؟ نہیں نہیں. کبھی نہیں صحابی کبھی کبھی حضور نہیں کر سکتے. تو یہ حدیث بریلی متشابہات کر ہے. اس سکتے ہیں، جاہل کو یہی نہیں معلوم ہے، جی بریلی کر جاہل کو سکتے یہ ہیں نہیں بس، معلوم ہے. صحابی نہیں. اس گھامڑ کو صحابی نہیں بریلی. متشابہات کا پتہ نہیں کہ حدیث بھی متشابہات ہوتی ہے، قرآن کی آیت بھی متشابہات ہوتی ہے، رسول کون ہوتے ہیں، نبی کون ہوتے ہیں. اللہ جاہل گھامڑ کو یہ نہیں پتا ہے. بتائیے کیا میں اس سے بات کروں؟ اللہ کی لعنت. اب دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق نے یہاں وضاحت کر دی کہ میرے نبی، خدا کی قسم تم پہ دوبارہ موت طاری نہیں ہو سکتی. اب اس نے یہ بالکل کہا صحیح تھا، ہاں صحیح بات اس کہہ نے رہے یہ کہا تھا کہ جو ہے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ملفوظات میں کہ کچھ وقت کے لیے موت آتی ہے، اس کے بعد وہ زندہ ہے. تو یہی عقیدہ حضرت ابو بکر دے رہے ہیں کہ حضور آپ پہ ہیں. دوبارہ موت طاری نہیں ہو سکتی. ٹھیک، اچھا، تو بھائی پہلی تو چیز. زندہ جب کر اب دیا دیکھو گیا تو اس کا امام مطلب حضر، کیا ہے؟ امام حضر فرماتے ہیں، اب مجھے حدیث کی شرح پڑھنے دے، خاموشی سے رہ. امام حضر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پڑھ رہے ہو حضرت بھائی، ابو بکر نے، بتا رہے ہی بتا بھائی. ہیلو ہیلو ہیلو. ارے بیچ میں کیوں بول رہا ہے بے؟ بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ پڑھ رہے اچھا ہو یہ یا بتا، بتا رہے ہو یہ تو بتا. بتا یہ حدیث محکم ہے یا متشابہات ہے؟ ارے بھائی پہلے کلیئر کرو، یہ تم پڑھ حدیث رہے ہو یا بتا رہے ہو؟ پہلے مجھے بتا، یہ حدیث محکم ہے یا متشابہات ہے؟ یہ حدیث بالکل واضح ہے، نہیں، محکم ہے یا متشابہات ہے یہ بتا. بالکل واضح حدیث ہے. اس بھائی سے جاہل عقیدہ آدمی، ہمارا میں پوچھ رہا ہوں محکم ہے یا ثابت ہے. متشابہات ہے؟ تجھے محکم اور متشابہات کا نہیں پتا کیا ہوتا ہے؟ یہ متشابہ آیات
बातों में से नहीं है, सादे हकीकों में से नहीं है। ये देखो ये हाल है अहले हदीस का जमशेद भाई। आप बोलिए ये नहीं पता है। देखिए इसने बोला रसूल कत्ल कर दिए जाते हैं, इसने ये बोला रसूल कभी कत्ल नहीं होता, नबी कत्ल हो सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, रसूल वह जाहिल आदमी रसूल कभी कत्ल नहीं हो सकता, वो नबी का जिक्र है वहाँ, कदे कहीं के कि नबी अगर शहीद कर दिए जाए, नबी अगर शहीद कर दिए जाएं, और याह्या अलैहिस्सलाम शहीद हुए, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा उठाया, नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मछली के पेट में रखा, शहीद नहीं होने दिया, घामड़ आदमी, नबी शहीद हुए, रसूल कभी शहीद नहीं हुए। तुझे रसूल और नबी में फर्क नहीं मालूम है, गधा कहीं का, और अपने आपको अहलुल हदीस बनता है। तुझे मुतशाबिहात हदीस में और मुहक्कम हदीस में फर्क नहीं मालूम है, और तू अहलुल हदीस बना बैठता है, जाहिल कहीं का। तूने इस्तेमाल किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू बकर ने ये कहा कि जो सहाबी हुजूर की इबादत करते थे वो जान ले। अब यहाँ पर देख, हजरत अबू बकर फरमाते हैं अगर तुम हुजूर की इबादत करते थे, तो वहां सहाबी मुखातिब नहीं है, गधे, सहाबी कभी हुजूर की इबादत नहीं कर सकते। सहाबी का अकीदा जो हुजूर देखे गए वो अटल था, तुम घामड़ को ये नहीं मालूम है, सहाबी कभी हुजूर की इबादत नहीं कर सकते। वहां से मुराद वो थे कि जो हुजूर की इबादत नहीं, जो नबियों की इबादत पहले कर चुके। जैसे आज की तारीख में अगर हम नबी का स्टैचू बना के माबूद समझ लेंगे तो हम काफिर हो जाएंगे। है जमशेद भाई जी। मैं अगर तुमको ये बोलूं जमशेद भाई अगर तुमने मेरे नबी की इबादत की तो तुम काफिर हो जाओगे, तो इसमें क्या गलत है? अगर, यहाँ अगर है, तो हजरत अबू बकर ने यही कहा कि अगर तुमने हुजूर की इबादत की तो जान लो कि हुजूर वफात पा गए। वो क्यों किया, क्या मौका था, वो क्या कर रहे थे, मूर्ति अबे तो वो हाथ से सहाबी मुखातिब नहीं थे, यही तो हदीस मुतशाबिहात है कधे। क्यों कहा गया यही वो, तो वो बात क्यों क्यों? कहा गया? इसलिए क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुस्सा ठंडा करने के लिए बोल लिए भाई, बोल लिए, हजरत अबू बकर इस हदीस की शरह पर इस हदीस की शरह पर भाई अब हम बोल रहे हैं पहले मुझे इसकी वजाहत कर, ये हदीस मुहक्कम है या मुतशाबिहात है? एकदम वाज़ेह हदीस है, एकदम वाज़ेह हदीस है। अबे मुहक्कम है या मुतशाबिहात है? वाज़ेह हदीस तो है ही है, एकदम वाज़ेह हदीस है, क्लियर है। इसका अकीदा बनाना जायज है? बनाया जा सकता है। अल्लाह अकबर। नहीं है, सीधा बोलो पता नहीं। जमशेद भाई अब मुझे सुन ले, जमशेद भाई दो इसने बातों बोला, पे मुझे बहुत बड़ा इसने एतराज बोला, है। एक कुरान की आयत का इनकार किया गया यहाँ पे। इसने जमशेद बोला भाई, कि इस हदीस से अकीदा बनाया जा सकता है। अच्छा किसने अकीदा बनाया बताओ, एक का नाम बताओ। जमशेद भाई मुझे बोलने इस दीजिए। हदीस से किस मुहद्दिस ने अकीदा बनाया ये बताओ। अरे बोल जमशेद भाई मैं बोलूं, जमशेद भाई बोलो। अरे बोलने के लिए तो बोल रहे हैं। इस हदीस से किसने अकीदा बनाया वो बताओ। सबसे पहले कुरान की आयत का इस भाई ने इनकार किया। सूरह नंबर 3 आले इमरान की आयत नंबर 144, कंजुल ईमान अहमद रजा खान साहब का तर्जुमा मैं पढ़ देता हूँ। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल है, इनसे पहले और रसूल हो चुके, तो अगर वो इंतकाल फरमाए या शहीद हो, रसूल के बारे में अहमद रजा खान साहब कह रहे हैं। जमशेद भाई फरमाएंगे। मैंने इससे ये पूछा कि इस हदीस से अकीदा किसने बनाया, तो ये देखो कहाँ भाग रहा है। अभी जाहिर को यही नहीं पता है कि रसूल और अंबिया में फर्क क्या है। यहाँ से अभी कुरान के ऊपर एक भाई ने तोहमत लगा रहा था, कुरान के आयतों को बता रहा था। अरे मैंने कहा कि रसूल कत्ल नहीं होते। अरे जाहिर रसूल शहीद नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने कहा है अहमद रजा, वहाँ से मुराद नबी है, रसूल नहीं है, नबी है। तो सिर्फ तर्जुमा पढ़ा मैंने, तो मेरा तो ये दावा नहीं था कि रसूल शहीद हुए हैं। मेरे तर्जुमे के ऊपर तो तुमने इतना बहस किया ना, मैं तो सिर्फ हदीस पढ़ रहा था। तुमको ये पता नहीं है, तुमको ये नॉलेज नहीं है कि रसूल और नबी में फर्क क्या है। मैं तो सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहा था। जमशेद भाई क्लियर कीजिए। जी बोलिए। जमशेद भाई मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहा था ना कि रसूल इससे पहले भी रसूल हो चुके हैं, इनको अगर मौत आ जाए या इनको शहीद कर दिया जाए तो ये शहीद, इस बात को लेकर भाई इतना बहस किया, बोला कि नहीं शहीद नहीं हो सकते रसूल, ये बोला था ना। तो मैंने क्या अपने बात को कर रखा था, ये मेरा कोई नजरिया था। अच्छा तुम्हारा अकीदा क्या है? पढ़ा था। तुम्हारा अकीदा क्या? रसूल शहीद कर सकते हैं, हो सकते हैं? वही मेरा अकीदा है। तुम्हारा अकीदा क्या है? रसूल शहीद हो सकते हैं? बिल्कुल, अल्लाह ताला जब बयान कर दिया तो मैं जमशेद भाई इसको नोट कर लीजिएगा, इसने कहा कि रसूल शहीद हो सकते हैं। कुरान की आयत को भी नोट करो, सूरे आले इमरान आयत नंबर 144। इसकी तफसीर पढ़ो, इस आयत की तफसीर पढ़ो, इस आयत की तफसीर पढ़ो। आला हजरत अहमद रजा खान, तुम्हारे आला हजरत भाई, हमारे नहीं। अरे आयत की तफसीर पढ़ो, आयत की तफसीर पढ़ो।
तर्जुमा पढ़ दिया, वाज़ेह है तफसीर बिल्कुल। पढ़ो, और तफसीर। मैं अबे तफसीर जाहिल क्या हो, बताऊं? जाहिल, तफसीर पढ़ो। अरे साहिब भाई की तुम हर जगह तुम लपेटोगे, मैं वहाँ लपटाता जाऊँ, बिल्कुल मैं आगे बढ़ूंगा। लपेटूंगा, तुम जैसे जाहिल को हम आवाम को तफसीर दिखाऊंगा ना, तुम इतने तफसीर बड़े ये बयान जाहिल कर देना, घामड़ है। इस आयत की तुम मुझे तफसीर पढ़ो, वाज़ेह कर देना तफसीर की, इस नहीं आयत यहाँ को। पे नहीं तफसीर नहीं नहीं नहीं, हो तुम सकता। पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, अरे तो तफसीर पढ़ो अब साहिब। मैं उस बात पे आता हूँ, सहाबा तर्जुमा तो सब कर लेता है, सहाबा लेकिन तफसीर में पता चलता है ना जाके कि तफसीर में। हाँ अरे जमशेद भाई सुनो, जमशेद नहीं भाई नहीं सुनो, जमशेद भाई, ए अभी जमशेद जो भाई, जिसने अभी जमशेद भाई, अभी सहाबा के ओ ऊपर जमशेद इसने भाई, ये तोहमत लगाई जमशेद ना भाई, कि जमशेद भाई, सहाबा इबादत कर रहे थे, अगर मैं ये सहाबा को कहूँ कि इबादत जैसे करा तो अलम मैंने तरा ये लफ्ज कैफ नहीं फ़अल कहा है। रब्बुका भी अस्हाबिल फिल, ए नबी तुमने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। मैं इसमें मंतिक घुमाऊंगा कि हाथी वाले तो वो थे जो नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जंग लड़ने आए थे, तो मेरी मंतिक नहीं चलेगी ना। इस हाथी वाले से मुराद वो होगा ना जो साहिब तफसीर ने किया है। तो इस आयत में जो अरे साहिब भाई मैं तफसीर ने आयत मंतिक नहीं किया तो लगा उसकी रहा हूँ, जो मानूंगा, जाहिल लिखा की हुआ है मानूंगा। वही बयान कर रहा हूँ, बयान करो, जो साहिब की लिखा तफसीर हुआ है पढ़ो, वही बयान कर रहा हूँ। अरे भाई जमशेद भाई, जो हदीस अभी बयान की उसको तफसीर भाई तफसीर, इतना देर लपेटा ना, तफसीर मुझे पढ़ो, बयान करने दो भाई, मैंने जो तफसीर पढ़ो, समझ रहा हूँ हदीस से, मुझे ये तफसीर बयान पढ़ो, करने दो। तफसीर हाँ, पढ़ो, तफसीर हाँ को वो मैं बता हदीस रहे की हो, तफसीर, बयान कर दीजिए ना। तफसीर पढ़ो। हाँ मैं हदीस की पहले तफसीर कर दूं। जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ पे अबे कहा हदीस की कि जो शरह नहीं तुम में होती से, सुन यार, मैंने पूछा जो ये तुम हदीस में से, मौका में या मुतशाबिहात है, ये बताओ। और अरे इसका अकीदा मुकल्लिद किसने के लिए बनाया वो होता बताओ। है, अबे मुकल्लिद जाहिल, के हम लिए मुकल्लिद तफसीर अकीदे होता में है। नहीं करते, हम मसले मुकल्लिद में सिर्फ अकीदे, हम अपने मसले इमाम में की बात तकलीद को करते हैं, मानता है जाहिल ना, आदमी। तो उसको तफसीर करना पड़ता है। ए जमशेद भाई, मुकल्लिद जाहिल होता है, मैं मानता हूँ, ओ मैं जमशेद भाई, जमशेद भाई, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। इसको जाहिल को जमशेद ये नहीं भाई, पता है कि हम मसाइल में तकलीद करते हैं, अकायद में नहीं करते। ये गधा है, क्या बोलूं अकायद इसको। में बिल्कुल करते हो, बिल्कुल अकायद करते में हो, तकलीद अकायद करते में हो। बिल्कुल करते हो भाई। ला तुम हौल अहमद रजा खान लिखा है, वला और कहीं और कौन लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वैसे ही जिंदा हो गए? कौन और लिखा ये है? तो हजरत अबू बकर फरमा रहे हैं अबू बकर क्या कहते हैं कि फिर कि वैसे तुमको जिंदा हो गए? दोबारा अल्लाह मौत के जिंदा नहीं हो अबू, सकती, तो मैं तुमको हाँ दोबारा वही मैं मौत तफसीर तारी नहीं हो सकती। मैं वही बयान कर लूं भाई। तुमको मैंने उस दोबारा, हदीस को, तो इन्हें कहने से क्या होता है, ये हदीस मौत जमशेद शाबियात भाई है। इस मुझे हदीस से बोलने अकीदा दीजिएगा बनाना जमशेद हराम भाई, है। सुन बे जाहिल, ओ जाहिल, ये जमशेद हदीस भाई, मुतशाबिहात है। बस ऐसी इस जाहिल हदीस से, गवार ये सब इस हदीस से करने से अकीदा अच्छा लग बनाना रहा आपको हराम है। जमशेद भाई? हाँ हाँ, जमशेद सुन रहा भाई, हूँ। ये अल्फाज भाई दिखा दे कि इस हदीस से अकीदा बनाना हराम है, मैं अपनी शिकस्त या अपनी हार मान लूंगा। ये जो बोलेगा मैं उसको सही माशाअल्लाह, मान सुभान लूंगा। अल्लाह, सुभान। अब खामोश हो जा, मुझे बयान करने हाँ, दे जमशेद भाई। हाफिज हजर अब मुंह अस्कलानी चुप, इसे मुंह नाम चुप, दिया था। मुंह चुप, ये आपको मुंह चुप, व्हाट्सएप मुंह कर चुप, देगा, ठीक है? मुंह चुप, अब मुझे मुंह चुप, बयान करने दो। मुंह चुप, हाफिज चुप, हाफिज चुप, इब्ने हजर का बयान कर दे, चुप, बात खत्म। और चुप, उसके बाद चुप, मुझे आगे बयान करने दो चुप, भाई। चुप, मैंने चुप, ये बात अपनी बात रख दी। चुप। जमशेद भाई, जमशेद भाई, जो उस हदीस में है कि इसको तुम में खामोश से करो, जो अब नबी इसको सल्लल्लाहु अलैहि खामोश वसल्लम की करो। इबादत करता था। जमशेद भाई, इसको खामोश करो। जमशेद भाई, नबी अलैहिस्सलाम की सहाबा इबादत जमशेद नहीं भाई मुझे करते थे। बोलने नहीं दिया जाएगा जमशेद भाई। अबे इतनी देर से तो बोल रहा है। अभी तो आपने बोल लिया ना। जमशेद भाई, मैंने जो बात रखी वो बात पेश कर देगा, बात खत्म। अरे उसके बाद में तो जो मुंह बंद है कर, जो तफसीर इस पढ़ने के लिए हदीस, तो आप मुंह बंद तफसीर कर, नहीं पढ़ रहे हैं। मुंह बंद कर, हाँ, क्या जमशेद भाई? मुंह बंद करो, मुझे बोलने दो। अभी अभी इनको बोलने दीजिए। देखिए हाँ वही सामने तो बोल रहा निगरान, हूँ मैं, मुझे देखिए बोल लेने सामने दे निगरान। भाई। अरे भाई जमशेद खामोश भाई, हो जा, मुझे बोलने दे। जमशेद भाई, हाँ, हेलो जमशेद भाई। को बोलने दीजिए अभी। हाँ, तो जमशेद भाई मैं ये कह रहा था कि उसमें जो हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबू बकर कहते हैं कि जो तुम में से मोहम्मद रसूलुल्लाह की इबादत करता था तो वो ये जान ले कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को वफात हो गई है, और जो तुम में से अल्लाह की इबादत करता है तो वो ये जान ले कि अल्लाह को कभी वफात नहीं, वो कभी मौत नहीं आएगी। ये मुआवजा करने का यहाँ पे मकसद ये था कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि जो भी कहेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात नहीं किए हैं, उनको मौत आ गई है, तो मैं उसका गर्दन उड़ा दूंगा। हदीस पर झूठ बोला ये जमशेद भाई, हदीस पर झूठ बोल रहा है। अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था, ये तुमने इकरार किया जो है मेरे नबी को मुर्दा कहेगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मुर्दा, याद रखना। मुर्दा, हाँ, मुर्दा कहेगा। मौत नहीं, मुर्दा, मौत आती है वो मुर्दा नहीं होता है। मुर्दा, मुर्दा, मुर्दा जिसको मौत आती है वो मुर्दा नहीं होता है। उसकी वजाहत करूंगा। चलो आगे बढ़ो। अरे सबका तो तफसीर है अबू बकर रजी अल्लाह ताला, अबू बकर का वहाँ पे ये कहना कि जो तुम में से मोहम्मद रसूलुल्लाह की इबादत करता है वो उन्हीं लोगों के लिए था जो आज के बरेलवी हैं, जो कहते हैं कि नबी को वफात नहीं हुई है। जैसे उस वक्त जैसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जो तुम में से ये कहेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को वफात हुई है, या जो तुम में से ये कहे कि मौत आई है, मैं उसका गर्दन उड़ा दूंगा, आज बरेलवी कहता है। उसी को उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और उस तरह मुआवजा करते हुए कहा कि जिसने अल्लाह को ये माना कि अल्लाह कभी इंतकाल, अल्लाह को कभी मौत नहीं आई, कभी इंतकाल नहीं करेगा, तो वो ये जान ले कि अल्लाह को बिल्कुल कभी वफात नहीं आई, अल्लाह कभी मरने वाला नहीं। अब तो ये मुआवजा करके ये बता दिया आज बरेलवी का। अब खामोश रहो, उनकी सुनो। मेरे बीच में बोलना नहीं,
मेरे बीच में बोलना नहीं, ठीक है ना, एकदम खामोश रहना। अरे मैंने बहुत देर देखा ना भाई, आप देखिए आप तो जमशेद बीच में भाई, बहुत डिस्टर्ब किए भाई। जमशेद भाई, अच्छा 1 मिनट और 2 मिनट और बोल लो, मैं खामोश हूँ। 2 मिनट और बोल लूं? हाँ बोल लो, खामोश हूँ। चलो ठीक है, तुम ही बोल लो यार। नहीं बोल लो। अच्छा बोल लेता हूँ। तो बोलो। तुम्हारे आला हजरत ने जो ये लिखा है कि नबी के कब्रों में उनकी बीवियों को पेश किया जाता है, वो उनके साथ शब्बासी करते हैं नाउजुबिल्लाह, तो वो इससे पहले लिखते हैं कि वो उनको वैसे ही हयात अता कर दी जाती है, वो दुनिया में वो खाते पीते हैं ना, और फिर उनके कब्रों में उनकी बीवियों को पेश किया जाता है नाउजुबिल्लाह। तो इसका मतलब है कि तुम मान रहे हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लम्हे भर के लिए मौत आई थी, उसके बाद वैसे ही जिंदा कर दी। जब वैसे ही जिंदा कर दिए गए तो मुझे बता दो भाई, तुमने दफन क्यों किया, सहाबा ने दफन क्यों किया? ये अकीदा कहाँ से मतलब अकल में आ रही है, जहन में आ रही है? किस बेवकूफ ने ये अकीदा बनाया है कि जब कुछ वक्त के लिए जब इंतकाल हुए थे, या जो बहुत सारे औलिया कराम के लिए भी ये तोहमत लगाई जाती है नाउजुबिल्लाह, उनको हम लोग गुस्ल देते हैं, उनको वजू करते हैं, अपने हाथ से दस्ताना पहन के उनके शर्मगाह को धोते हैं नाउजुबिल्लाह, और फिर ये मानना है कि नाउजुबिल्लाह वो जिंदा हैं, कुछ लम्हे के लिए मौत आई है, वो तो जिंदा हो गए हैं, और उनके शर्मगाह को कोई और धो रहा है, कोई वजू दे रहा है, कंधे पे लोड करके कोई ले गया, कब्र में कोई अंदर जाके उसको गोद में लेकर उनको कब्र में फिर गाड़ दिया नाउजुबिल्लाह। अरे जब जिंदा हो गए हैं तो क्यों गाड़ा? उससे इस्तेफादा लो। जब कोई तुम्हारे मसले में, जैसे कुरान की आयत है, तुम्हारे दरमियान जब इख्तलाफ हो जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करो, तो जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने इख्तलाफात। हजरत आयशा, हजरत अली में जो जंगें हुई, वहाँ वो लोग सहाबा का ये अकीदा होता तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कब्रों पे जाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्रों से बात करते, मगर उनका ये अकीदा नहीं था, किसी सहाबी का नहीं था। अगर वो होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रों पे जाकर वो इबादत, वो उनसे पूछते, उनसे मसाइल पूछते, और मसाइल पूछते तो इसे कोई ना कोई हदीस में ये जिक्र होता। इमाम मालिक वहाँ पे इतना दिन दर्स दिए, वहाँ इमाम मालिक मस्जिद नबी में दर्स देते थे, हदीसें सही आती थी, ज़ईफ आती थी। अगर ये मसला होता तो वो पूछ लेते, तो वहाँ पे वो जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए ये हदीस है, ठीक है बयान कीजिए भाई, ठीक है काफी है। जमशेद भाई मैंने बरेलवी का जो देखो फिर भी से बोल रहा है यार जमशेद भाई। अरे सरफराज यार, अरे भाई अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह क्यों बोल रहा भाई? अब जरा तो तुमने अपने बीच में बोला ना, मैं मुझे बोलने दो ना यार। क्यों आपने बोला ये बताइए जरा। तुमने ये कहा कि बरेलवी बेवकूफों का ये अकीदा है कि हुजूर जिंदा है, मैंने इस पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, खामोश हो जाओ। अब देखिए सामने इकराम, इसने ये कहा नहीं जिंदा है, नहीं जमशेद भाई इसको खामोश करो यार। वैसे ही जिंदा है, मैंने ये भी कहा जमशेद भाई, जैसे पहले जिंदा थे। अहमद अल्लाह खान साहब लिखते हैं कि जैसे जमशेद भाई वैसे ही जिंदा कर दी जाते हैं। अरे भाई गलत बोलेंगे तो क्लियर करना होगा ना जमशेद भाई। जमशेद भाई हमारा भी अकीदा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र में जिंदा है। ये क्या भगवान चरस वरस लगा के आया है क्या? ये बोलता जा रहा है, बोलने नहीं दे रहा है। चलो बोल लो भाई, बोल लो। देखिए सामने इकराम, इसने ये कहा कि बेवकूफों का ये अकीदा है कि हुजूर उसी तरीके से जिंदा है जैसे दुनिया में जिंदा थे। इसने बेवकूफ का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसको गौर में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए ये हदीस जो मैंने मुतशाबिहात बताई, ये मुतशाबिहात क्यों है मैं आपको इसकी वजाहत कर देता हूँ। ये देखिए ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त है। अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सबसे पहले आपसे कौन सी जोजा जाके मुलाकात करेंगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसके हाथ सबसे लंबे होंगे। तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा सबके हाथ को नापने लगी और अनहो बोल रहा भाई, अनहा होता है। अरे यार जमशेद भाई चुप कराओ यार। अरे भाई अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अरे भाई चुप हो जाए यार। अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने, तुम यार आलिम हो बरेली का, तुम्हें मालूम नहीं। अरे जमशेद भाई फोन रख दो यार, फोन रख दो। ऐसे बड़बड़ाने से क्या फायदा है? डरो नहीं, ऐसे जाहिलों से मैं क्या बात करूं बताओ? बड़बड़ाने से कोई हो जाता है क्या? अरे यार तुम मर्द को लड़की तुमने बीच में इतना गलत इस्तेमाल किया अल्फाज, मैंने कुछ बोला तुमको बोला मैंने कुछ? तुम हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हो इतनी देर से, मैं कुछ बोला तुमको? तुम जमशेद भाई की जगह अनहो लगा रहे हो। मैंने अनहो नहीं बोला, जाहिल आदमी रिकॉर्डिंग सुन लेना जाके। तुम रिकॉर्डिंग सुन लेना, तुम सुन लेना।
जमशेद अली कादरी ने रिकॉर्ड हो रहा है, तुम जब अम्मी ठीक है, आयशा ठीक है। जब अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला, अभी मैं तुम हदीस पढ़ रहे थे, मैंने एक अल्फाज बोला तो तुम बीच में बोले कि हदीस सीने में नहीं, चुभ मैं रही है। अब मैं तुम्हारे जब कहाँ गलत चुभ पढ़ रही रहा है? था तुम, अब मैं तुम्हारे अगर कहाँ चुभ तुमको रही है ये आपको हदीस? जो अब मैं गलत ये लगता हदीस था पढ़ रहा हूँ आप तो वो मेरे टोकते कहाँ थे। चुभ रही है? बिल्कुल अम्मी नहीं चुभ रही है, आयशा तुम गलत पढ़ अम्मी रहे हो, आयशा चुभ रही है। अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बोला कि अल्लाह के रसूल सबसे पहले आपसे कौन सी जोजा जाके मुलाकात करेंगी? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके हाथ सबसे लंबे होंगे। अच्छा, उसके बाद और लाउडली बोलो भाई। हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात हुई और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल सबसे पहले हुआ। तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि सबसे पहले हुजूर से हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जाके मुलाकात की। तो अगर हुजूर मर गए थे तो मुलाकात कैसी? अम्मी आयशा के ऊपर इसने तोहमत बांधी कि ऐसा अकीदा रखना कि हुजूर जिंदा है, वो बेवकूफ अकीदा है, बेवकूफों का काम है। तो अम्मी आयशा फरमाती हैं कि सबसे पहले इंतकाल के बाद अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का कहना है कि सबसे पहले अनहो ज़ैनब फिर रजी बोल रहा है भाई, अल्लाह, फिर अनहो अरे यार बोला, मुंह बंद करना, अनहा फिर बोल रहा है, अनहो बोला अनहा भाई। बोल रहा है, अनहा अरे बोल रहा है। यार सबसे पहले अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि सबसे पहले ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जाके मुलाकात की हुजूर से। अब पता ये लगता है कि मुलाकात कहाँ की? तो हुजूर अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है। इस हदीस की शरह में इमाम क्या कहते हैं ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह करते हैं और कहते हैं कि हुजूर अपनी कब्र में जिंदा है और उनकी बीवियां पेश की जाती है। अम्मी हजरत, ज़रकानी कौन है भाई? तुम्हें पता ही नहीं, तुम जाहिल हो, मैं क्या बताऊं? अल्लामा ज़रकानी ज़ुरकानी, कौन है? चुप हो जाओ। अल्लामा ज़ुरकानी कहाँ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कहाँ के हैं, अम्मी, कहाँ के? अरे यार इसको चुप कराओ जमशेद भाई। अरे अम्मी बता दो तो आयशा, हमको भी मालूम हो जाएगा ना भाई, कहाँ के हैं ये? हाँ तो बात ये 12वीं सदी के मुजद्दिद हैं, कहाँ के हैं, कहाँ की पैदाइश है? ज़ुरकान के। अच्छा, अल्लामा ज़ुरकानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बस फतवाज़ात में अल्लामा, इस हदीस की बस शरह नाम इनका करते हैं। अल्लामा था क्या? हाँ, ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह में कहते हैं कि हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सबसे पहले मुलाकात अपने नबी की कब्र में जाकर के मुलाकात की। इसी को कहते हैं मुलाकात करने को शब्बाशी, और इसी रिवायत को कॉपी किया हज़रत ने अल-मलफूज में। तुम जाहिल हो, तुमको पता नहीं है। अब ये बताओ, अम्मी आयशा ने ये कहा कि हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सबसे पहले मेरे नबी से जाके मुलाकात की। तो अम्मी आयशा का ये अकीदा कि मेरे नबी जिंदा हैं और हजरत ज़ैनब ने सबसे पहले जाके मुलाकात की, इसका मतलब और भी जोजा जाके मुलाकात करेंगी। तो अम्मी आयशा का ये अकीदा कि हुजूर अपनी खबर में जिंदा है, मुलाकात करते हैं और मुलाकात की। तो इस अकीदे को तुमने कहा कि जो ये अकीदा रखे कि हुजूर जिंदा है, मुलाकात करते हैं, तो वो बेवकूफ है। तो अम्मी आयशा को तुमने बेवकूफ बोला। आप खामोश रहना। मैंने ये दूसरी चीज, अल्फाज नहीं मुंह बंद इस्तेमाल कर, किए हैं मुंह बंद जिसने कर, तुम। मुंह बंद कर, ए भाई, मुंह बंद तमीज कर, से बात करो मुंह यार, बंद कर, तमीज से बात करो, मुंह बंद कर, बदतमीजी मत करो। मुंह बंद कर, बरेली बदतमीज मुंह होते हैं, बंद मुझे कर। मालूम है, गाली गलौज फड़फड़ाने लगा करते हैं। हदीस सुन के, हदीस सुन के फड़फड़ाने लगा, वो मिर्गी आने हदीस लगी, नहीं है, मिर्गी आने लगी। तुम हदीस माज़अल्लाह, ये हदीस नहीं है बुखारी की। कोई ज़रकानी का बता रहे हो तुम। अच्छा, तो अल्लामा ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? ज़रकानी की तफसीर है, अबे तो जाहिल के समझे बच्चे ना? वही तो पढ़ रहा हो, चुप, मुंह बंद कर। अब उसके बाद इसने ये कहा, देखिए मैंने इस इसको तरह ये से पूछा, बदतमीजी जमशेद भाई, करेगा जमशेद भाई, जमशेद भाई, जमशेद भाई, इसको मैं इसके बीच में नहीं बोला था। ये गाली दे रहा है, ये जमशेद बाप भाई, मैं तक इसके पहुंच बीच में रहा नहीं है। बोला था। जमशेद भाई ये बाप तक पहुंच रहा है, जाहिल का बच्चा बोल रहा है। जमशेद भाई, मैं इसके बीच में नहीं बोला था यार, इसको चुप क्यों नहीं कराते हो अरे तुम भाई यार? तुम ऐसे बदतमीजी करो, ऐसे गाली दोगे तुम? बरेली और जो जमशेद जाहिल भाई, होते हैं गाली देते हैं, हमको मालूम है, ठीक है। फारूक खान जी अंदरंडी का बच्चा क्या जमशेद भाई, कहता है हमको मालूम है। मैं नहीं कहता हूँ भाई, मैं नहीं कह सकता हूँ, हमारे ये अल्फाज नहीं गिर सकते हैं। जमशेद भाई, बोले बोले आप। मैं कह रहा हूँ, जमशेद मेरे भाई टाइम में तो ये आप बहुत कैसे बोल रहे जाहिल थे का कि चुप बच्चा हो जाओ, कैसे इसको बोला? क्यों नहीं चुप कराते हो यार? हाँ तो इसको तो बोल ही तो रहा हूँ, समझ में पहले लीड हटाओ यार, तुम अपनी पहले लीड हटाओ। अरे नहीं, इनको जमशेद बोलिए। भाई इसने इसको कैसे बोलो कहा भाई खामोश रहे। जाहिल का बच्चा? अभी साबित करो ना, जाहिल का बच्चा तूने बेवकूफ बोला अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को, जाहिल का तूने बच्चा बेवकूफ इसने बोला, कैसे कहा जमशेद तूने भाई? बेवकूफ बोला, तूने मेरी अम्मी को बेवकूफ बोला, इसीलिए तुम्हारी तुझे अम्मी जाहिल को का मैंने बच्चा कहा? बोला। हाँ, अरे अम्मी भाई मैं आयशा तुम्हारी रजी अल्लाह अम्मी को तआला नहीं अन्हा को पहचान तूने रहा हूँ भाई, बेवकूफ बोला। मोमिनों की अम्मी है। हाँ तो मैं मोमिनों मोमिन की हूँ ना, अम्मी तू है जाहिल हज़रत है। आयशा। मैं मोमिन हूँ, तू जाहिल है। मैं मोमिन हूँ, तू बदअकीदों की जाहिल नहीं है। है तूने भाई, उनको बेवकूफ बोला, तूने उनको बेवकूफ बोला। नबी की इबादत करने जमशेद वालों भाई, की इसका नहीं है काम हो अम्मी। गया, ये नहीं बोलने देगा। अब इसको अरे पता लग अबे गया कि इसका नहीं नहीं अकीदा तुम बातिल साबित हो गया। पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ने दो इनको यार, तुम यार। अरे भाई इसने मैं अपने 4 ऊपर मिनट लानत खामोश किया, रहा, मैं कैसे ये 4 बोल रहा है? मिनट इसके मतलब बीच में बोला ही नहीं, इस मनहूस इंसान के बीच में मैं बोला ही नहीं 4 मिनट। अरे भाई लेकिन ये मेरे अपने बीच में ऊपर टप टप लानत टप किया टप अभी। टप 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 कर रहा है। अच्छा लानत के ऊपर बता दो यार, तुमने लानत किया था ना अपने ऊपर। जमशेद अरे भाई, सफरान, फोन रख दो, समझ में नहीं आ रहा बात फोन क्या? रख दो।
फोन रख दो, जान के बस की बात नहीं है मेरा मुकाबला करना। जमशेद भाई, इसने अपने ऊपर लानत किया था ना। अरे तुम पे लानत है यार, तुमको समझ में नहीं आ रहा है जब वो मतलब बोल रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं तो अरे चुप रहे हो यार। कहाँ पढ़ रहे हैं यार, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? अरे बुखारी की हदीस मैंने पढ़ी, अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि सबसे पहले मेरे नबी से हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मुलाकात की जाके। हदीस नंबर बोलो भाई। अब खामोश रहे, अब खामोश रहे, मुझे पढ़ने दे, मैं हदीस भेज रहा हूँ तुझे, अभी भेज रहा हूँ। हाँ, उसके बाद बाद भी बोल दो। हाँ बता रहा हूँ, उसके बाद सुनिए जमशेद भाई। अरे यार तुम इसने कहा मुझे हमारे पास भेजे हो तो तुम जब पढ़ रहे हैं तो बाद में भेज देंगे ना तुम्हारे पास। जाहिल का बच्चा काहे बोला जमशेद भाई? जब इसने ये कहा, काहे नहीं बोल रहे हो यार? जब इसने ये कहा जमशेद भाई, काहे नहीं बोल रहे हो? ये बदतमीजी का माँ बाप पर पहुँच रहा है। इसने मेरी अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को बेवकूफ बोला, तो इस जाहिल के बच्चे को मैं जाहिल ना बोलूं तो क्या बोलूं? तुम इस जाहिल के बच्चे को मैं जाहिल ना बोलूं तो क्या बोलूं? रास्ता बना के बोलोगे। अब तू जाहिल का बच्चा साबित हो रहा है तो मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। तेरी बस की बात नहीं है। दुनिया वहाबियत में ना किसी माँ ने अच्छी औलाद पैदा नहीं की जो मेरा मुकाबला कर ले। आप मुकम्मल यही अपनी तारीफ दुनिया वहाबियत में किसी माँ ने हलाली औलाद पैदा ही नहीं की। मैं कह रहा हूँ मैं 4 मिनट खामोश रहा, लेकिन तू खामोश रह ही नहीं सकता। जमशेद भाई अपनी तारीफ करोगे, बोलने दीजिए, मुकम्मल कीजिए आप। मैं कह रहा हूँ ये मुझे बोलने नहीं देगा। गाली नहीं देने, बस हमको कोई एतराज नहीं है, इतनी देर हम कुछ नहीं बोले थे। अच्छा आप सुनिए, मुकम्मल करो। इसने जमशेद भाई बेवकूफ बोला, आला हजरत को मैं इसके बीच में बोला था? नहीं। तो इस जहन्नमी कुत्ते को चुप कराओ ना। देखिए ये तूने मेरे आला हजरत को बेवकूफ बोला, मैंने तेरे बीच में बोला था? अबे तूने मेरे आला हजरत की शान में बेवकूफी का इस्तेमाल लफ्ज किया था, मैं कुछ बोला तेरे बीच में? तूने बोला कि आला हजरत बेवकूफ का ये अकीदा है, बरेलवी बेवकूफ बरेलवियों का ये अकीदा है। तूने बोला बरेलवी बेवकूफों का ये अकीदा है। नहीं कहा है, देख रहे जमशेद भाई, बरेलवी का नाम लिए मैंने किसी को पर्टिकुलर छूटा मारूंगा खींच के तेरे मुंह पे, झूठ बोलेगा तो तेरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। मैंने किसी को बेवकूफ नहीं कहा। अरे बरेलवी का नाम हमने बोला आज के बरेलवी बेवकूफों का ये अकीदा है, आज के बरेलवी बेवकूफों का ये अकीदा है। अल्लाह की लानत हो, बोलो आमीन आमीन आमीन। अब चुप हो जा, अब मुझे बोलने दे। बोल लो, जहालत मत करना, गाली गलौज मत करो। तो सामीन इकराम आपने देखा कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जो अकीदा है कि हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सबसे पहले मेरे नबी से जाके मुलाकात की, तो यहाँ से ये वाजे हो गया कि सहाबिया का, हुजूर की रोज़ा मुबारका का ये अकीदा है। अम्मी आयशा वो है कि जिन्होंने मोमिनों को पढ़ाया, उनका ये अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है, मेरा नबी जिंदा है और जोजा से मुलाकात भी कर रहे हैं। फिर भी इसमें बोल रहा है, लिखा है, फिर भी इसमें बोल रहा है, कहाँ लिखा है? हजरत अम्मी आयशा ने क्या फरमाया कि सबसे पहले ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुलाकात की? कहाँ मुलाकात की जाके? बरज़ख में मुलाकात की। मारू मुंह पे तमाचा खींच के तेरे मुंह पे, मारू मुंह पे तमाचा। मुलाकात की तो अकीदा हुआ ना कि हुजूर जिंदा है, हुजूर जिंदा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत हुजूर जिंदा है, हुजूर जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है, हाँ बिल्कुल जिंदा है। अब ये हदीस सुन, एक और हदीस सुन, मुंह बंद कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह जिंदा बंद, है, मगर मुंह जो बंद, ये मुंह कहे बंद, कि मुंह पहले बंद, जैसे मुंह जिंदा बंद, थे वैसे मुंह ही बंद, जिंदा है, अभी पहले जैसे बता रहा हूँ, मुंह बंद, पहले से भी जिसने ये कहा पहले से भी बढ़कर जिंदा है, जिंदा हो जाते हैं, पहले से भी बढ़कर जिंदा है, पहले से भी बढ़कर जिंदा है। हाँ तो अभी तो तुम पहले से भी बढ़कर जिंदा है। ने भी नहीं कहा, अब सुन कैसे जिंदा है, जैसे जिंदा थे वैसे ही। इनकी औकात नहीं है जमशेद भाई, नहीं है इनकी औकात, मेरी बात ये तो अपने अहमद रजा खान को भी गलत बोल रहा है भाई। आप देखो ये बदतमीजी कर रहा है। अहमद रजा खान ने तो ये कहा कि जैसे पहले जिंदा थे वैसे ही जिंदा होते हैं। मैं कह रहा हूँ, अरे तो मुझे साबित करने देना, अहमद रजा खान को भी गलत बोल दिया भाई। तो साबित तो करने दे, मैं देख साबित कर रहा हूँ, हदीस से साबित कर रहा हूँ, बरेली बनो, हनफी बनो, कुछ तो बन जाओ, हदीस से साबित कर रहा हूँ, हदीस से साबित कर रहा हूँ। देख हदीस बयान करो, हदीस सुन, चलो सुन, खामोश बयान करो। अब सुन, ये देख मुस्लिम शरीफ की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं शब मेराज तशरीफ ले जा रहा था तो मैं टीले पे खड़ा हुआ और मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से सुनियो, हुजूर जब मस्जिदुल अक्सा पहुंचे, ध्यान से सुनियो, हुजूर जब मस्जिदुल अक्सा पहुंचे तो तमाम अंबिया की जमात हुजूर से पहले मस्जिदुल अक्सा पहुंची हुई थी। अब जब आदमी जिंदा होता है, ध्यान से सुनना, आदमी जब जिंदा होता है तो वो सफर करता है सुवारी से, किससे? घोड़े से, ऊंट से। तो उसको वक्त लगता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उस दौर में, ठीक है ना। अब देख, अंबिया की कब्र पूरी दुनिया में मौजूद है और वो पहले से ज्यादा बेहतर जिंदगी में है। उसका सबूत ये है कि अंबिया की पूरी जमात पूरी दुनिया में कब्र है, पूरी दुनिया में
कहाँ है मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? मूसा अलैहिस्सलाम की ईसा कब्र का अलैहिस्सलाम, सुन पूरी दुनिया मूसा, दाऊद, सुन इब्राहिम, पूरी दुनिया में, इसहाक, पूरी दुनिया कहाँ में, है? पूरी दुनिया में, ये मजार का तस्वुर ही खत्म पूरी हो गया। दुनिया अल्लाह में, पूरी ताला ने दुनिया में। नबियों की कब्रों को खत्म करके ये तस्वुर ही खत्म कर दिया ला कि हौल वला मजार कुव्वत। परस्त थी। अच्छा ये बता, आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? कहाँ है बता? कहाँ? कहीं तुझसे नहीं पूछ है, रहा हूँ, कहीं नहीं है। चल, शी अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? श्रीलंका में नहीं है? नहीं है, नहीं शी है। अलैहिस्सलाम की अल्लाह लानत हो ताला तुझ ने पर, उसका वजूद ही अल्लाह खत्म की कर दिया। लानत। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र कैसे बच गई? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। कहाँ है कब्र? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ है मुस्लिम कब्र? की हदीस, कहाँ है कब्र? मुस्लिम की हदीस, अल्लाह ताला ने क्यों नहीं महफूज मुस्लिम किया? की जिस तरह हदीस। तुमने तुम इस हदीस को नहीं मानेगा, इस हदीस को नहीं मानेगा। उम्माओं की कब्रों ए को वहाबी, महफूज इस करके हदीस को नहीं कुब्बे मानेगा, जुब्बा बना इस दिया हदीस है, को नहीं मजार मानेगा, बना के इस हदीस इबादत को कर नहीं रहे मानेगा, हो। इस हदीस को नहीं मानेगा। मैं मान रहा हूँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ, मजार का तस्वुर ही नहीं है इस्लाम में। अल्लाह ताला ने क्यों नहीं हिफाजत से रखा मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को कि जाके लोग जियारत करें, फूल चढ़ाएं, चद्दर चढ़ाएं, उनसे मुरादे मांगे, उस पर चढ़ावा चढ़ाएं, सिरनी चढ़ाएं? हैं? मतलब बरेली का अकीदा गलत। हेलो हेलो, आवाज बंद हो गई। हेलो, हाँ जमशेद भाई। हाँ मेरा स्विच ऑफ गया था मोबाइल। तुमने ये कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहीं नहीं है। सुनिए, हम तो समझे कि भाग ही गए हैं भाई। लाहौल बिलाकुवत, हम भगाने वालों में से हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक वैसी की वैसी आज भी मौजूद है और मजार कहाँ के है? फिलिस्तीन में। अब सुनिए आगे। मूसा मूसा अलैहिस्सलाम की अलैहिस्सलाम कब्र फिलिस्तीन में किस फिलिस्तीन में, शहर में भाई? फिलिस्तीन में किस शहर में वो भी बता देंगे, जाकर के गूगल पे सर्च मार लो, मिल जाएगा तुम्हें। सुनो अरे इधर, भाई तुम कब्रों से इधर घूमने सुनो, वाले, जहाँ तहाँ इधर सुनो, गजड़ी पजड़ी का इधर कब्रों सुनो। को घूमने वाले, लाहौल नबी की कब्र बिलाकुवत, को नहीं जान रहे? लाहौल बिलाकुवत, लानत हो तुम पर। अंबिया घोड़े की कब्र, अलैहिस्सलाम को कबूतर की कब्र, लानत हो यहाँ तुम पर, बड़ा बाजार में गया मैं, तोते की कब्र। मजार है लानत हो सॉरी, तुम पर, कब्र नहीं है, तुम पर मजार बनाया लानत हुआ हो, लोग। तुम पर लानत हो। मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को घोड़े की कब्र बता रहे हो तुम, लानत हो तुम पर। अरे मैं बोल रहा हूँ बड़ा बाजार में आप है, सुन तोते की कब्र है। जमशेद भाई, बेवकूफ हो क्या यार? जी जी। ओ जमशेद भाई, अब इसको खामोश कर, मैं बोलूं? देखो मैं मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र को बोला था मैं जमशेद बोलूं? भाई, देखो ये अरे कैसे बात को घुमाता है। मैं जब समझ बता बात है रहा हूँ, अरे मैं जब मूसा बता रहा हूँ अलैहिस्सलाम मूसा की कब्र अलैहिस्सलाम की बता कब्र रहे हैं ना, तुम क्या फिलिस्तीन में है, बकवास कर रहे हो? जब फिलिस्तीन में है तो बात खत्म हो गई। तुम्हें अरे फालतू भाई बकवास तुम करने की ऐसे जरूरत भी ही नहीं है, आप गोदी मीडिया का तरह फालतू बीजेपी बकवास सपोर्टर करने की जरूरत ही नहीं है, फालतू इतना बकवास अंधे मत करने की बनो जरूरत यार। ही नहीं है। ऐसे अब मैंने सुनिए मूसा अलैहिस्सलाम जमशेद की भाई, कब्र को बोला था क्या? और जमशेद भाई, हैं? अब मैंने जो ये कहा था कि पहले से बेहतर जिंदगी संदीप में, उसको पात्रा साबित जैसे करने दो। बात घुमाता जी, जी। है डिबेट में तो कांग्रेस के जब नेताओं का, अल्लाह के वैसे ही रसूल ये बात मस्जिदुल को अक्सा घुमा रहा है। पहुंचे तो तमाम अंबिया तोते का वहां मजार पहले से नहीं है, मौजूद घोड़े थे का मजार जिस्मानी नहीं तौर है। पर। जी और एक अंबिया दूसरे अंबिया जहां उनकी कब्र है तो फिलिस्तीन से मस्जिदुल अक्सा से कई लाख किलोमीटर दूर, कई हजार किलोमीटर दूर है। और वो कहाँ है किसी यूसुफ सवारी से अलैहिस्सलाम नहीं की आए, कब्र? कहाँ है वो याह्या बरज़ख अलैहिस्सलाम से, की कब्र? वो कहाँ है नबूवत की रफ्तार से आए। जी जी जी। दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र? कहाँ है मैं पूछ रहा हूँ तो 1,24,000 पैगंबर के पीछे इब्राहिम नमाज कैसे अलैहिस्सलाम की पढ़ाई? कब्र? कहाँ है? हुजूर ने नमाज नहीं पढ़ाई 1,24,000 पैगंबर को? मैं पूछ रहा हूँ कब्र कहाँ है, मजार मैं कहाँ क्या है पूछ उनका? रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, नमाज नहीं पढ़ाई उन्होंने अल्लाह के बिल्कुल रसूल ने? पढ़ाई, तो बिल्कुल कैसे आए पढ़ाई। वो मस्जिदुल अक्सा में कैसे आए? अरे उनका जो है वो क्या जूता कहते हैं मारूंगा उसको? जाहिल के बच्चे मुंह पे खींच के, इतना बड़ा जूता मारूंगा खींच के, जाहिल की औलाद तुझे, कि तू कमीने इतना बड़ा हरामी है, तू हदीसों को झुटलाता है। जब मैंने अरे तुझसे तू कहा कि चला अम्मी इतना आयशा को तूने बदतमीजी बेवकूफ कर बोला, रहा है यार अब तू जमशेद मूसा भाई, इतना गाली अलैहिस्सलाम गलौज की कर रहा कब्र है को यार। घोड़े की कब्र बता रहा है, हरामी की औलाद। तुझे इतना जूता मारूंगा ना खींच के मुंह पे, गधे। जो भी तो मूसा ऑडियो सुन रहा है ना वो अलैहिस्सलाम की जान रहा कब्र है जब कि बता किस रहा तरह हूँ से कि तुम उनकी कब्र बदतमीजी कर रहे हो। मुबारक और फिलिस्तीन में क्या मौजूद है, तो बरेली ये कह सिर्फ रहा इस कि तरह घोड़े गाली की गलौज कब्र को, करने वाले गंजेड़ी की होते हैं क्या कब्र को यार? तुम अंबिया की कब्र बना देते हो। मारूंगा साले मुंह पे जूता खींच के। ऐसी बदतमीजी करने वाले होते हैं क्या? ऐसी देख गाली लेना गलौज जमशेद करने भाई, वाले होते गुस्ताखी हैं? कर रहे हो तुम्हारे साथ, मतलब ये तुम गुस्ताखी कर रहे हो ना? क्या कह रहा हूँ? तूने गुस्ताखी कर अंबिया रहे की हो ना, कब्र को बोला कि गुस्ताखी कर तुम रहे हो। घोड़े की कब्र को अंबिया मूसा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम की के कब्र बना देते जमशेद हो। भाई को बोलने दो भाई, जमशेद भाई को बोलने दो। हाँ जमशेद भाई साला बोलिए, क्या हरामी मैं की गलत औलाद बोला? कहीं का, जमशेद गूगल का भाई, मुकल्लिद। अब मैं जमशेद कह भाई रहा हूँ मैंने तू क्या गलत गूगल बोला? पे, तूने ये बोला कि तुम घोड़े जमशेद भाई गजेड़ी की हेलो, कब्र को अंबिया की जमशेद कब्र भाई, बना देते हो। जमशेद भाई
अच्छा देखिए सामीन इकराम, इस जाहिल को मैंने अम्मी आयशा से ये साबित करके दिया कि अम्मी आयशा का भी ये अकीदा है कि बरज़की जिंदगी में उनकी जोजा मुबारका जाके उनसे मुलाकात करती है और शाबाशी भी करती है, यानी क़याम करती है। इस जाहिल को मैंने ये भी साबित करके दिया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से जो ये हदीस पढ़ रहा था बुखारी की, वो मुतशाबिहात है। उस हदीस से किसी मुहद्दिस मुफस्सिरीन ने अकीदा बयान नहीं किया। इस जाहिल को मैंने ये भी साबित करके दिया कि सहाबिया का अकीदा ये है कि हुजूर जिंदा है, और इस जाहिल को मैंने ये भी साबित करके दिया कि तमाम अंबिया जो हैं वो दुनियावी जिंदगी से बेहतर जिंदगी में है, क्योंकि वो तमाम अंबिया अपनी अपनी कब्र से उठ के नबूवत की रफ्तार से मस्जिदुल अक्सा पहुंचे, हुजूर के पीछे नमाज अदा की, और हुजूर ये तासुस दे रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। इस जाहिल के बच्चे को मैंने सारे अकीदे बयान किए, और ये जाहिल का बच्चा मुतशाबिहात की हदीस को पकड़ के और गलत मौके पेश कर रहा है। इतने बड़े साले जाहिल घामड़ अहलुल हदीस। कौन से मुतशाबे आयात, कौन सी मुतशाबे हदीस? मुतशाबिहात हदीस बुखारी की जो तूने पढ़ी, घामड़ की औलाद, जाहिल। तुमने दो बातें कही थी। तूने कहा कि तुम साबित करके दिखाओ कि हुजूर वैसे ही जिंदा हैं जैसे दुनिया में थे। अम्मी आयशा की हदीस से मैंने साबित करके दिया, अम्मी आयशा की हदीस से मैंने साबित करके दिया। तू जैसे जाहिल की औलाद को तू कहता है मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को, तुमने घोड़े की कब्र को मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बना दिया फिलिस्तीन में। तू जैसे गधे की औलाद को क्या बोलने दो तुझको? तो मुझे पढ़ने नहीं दे रहा हदीस। जब मैं हदीस पढ़ता हूँ तो बीच में टोकता है, और जब हदीस में तू फंसता है तो बीच में बड़बड़ाता है। कब्रों को जमशेद भाई देख रहे हो, याद रखते हो, और मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को इसने बोला कि घोड़े और खच्चर की कब्र को तुमने मूसा की कब्र बना दिया। जाहिल घामड़ को, कुत्ते के बच्चे को जूता ना मारूं तो क्या मारूं? जब आप क्या मारूं जूते को? झूठे पर अल्लाह की लानत हो। बोलो झूठे गधे के बच्चे। मूसा अलैहिस्सलाम की अगर कब्र, सुन, मूसा अलैहिस्सलाम की मज़र अगर फिलिस्तीन में हुई तो अल्लाह की लानत हो तुझ पर, तुझ पर अल्लाह की लानत हो। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को घोड़े की कब्र बोला हो, उसके ऊपर लानत हो। अच्छा आप सुन, तूने तशबीह दी, तूने कहा कि तुम तो घोड़े की कब्र को भी मूसा की कब्र बना देते हो। अब मुंह बंद कर साले, जूता मारूंगा खींच के मुंह पे। चल बोल, झूठों पे अल्लाह की लानत हो। अगर अगर फिलिस्तीन में मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, मज़ार मुबारक मौजूद हुई तो तुझ पर अल्लाह की लानत। आमीन तो बोल। बिल्कुल अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने घोड़े और खच्चर की तशबीहात को बरेलवियों से जोड़ा कि बरेलवी घोड़े और खच्चर को मज़ार बना देते हैं। वो बरेलवी नहीं है, तेरे जैसे बरेलवी है वो। मैंने और एक बात मुझे ये बता कि जो पक्की कब्र बनाए, जो पक्की कब्र बनाए, पलट रहा है, सुन, कैसे साइड हो रहा है बेचारा। जो पक्की कब्र बनाए उस पर क्या हुक्म लगेगा? बोला था उस झूठ को कैसे साइड थोड़ा ले रहा है। जब मैंने जमशेद भाई, जब मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बताई, इसको मज़ार बताई कि फिलिस्तीन में, तो इस हरामी ने क्या बोला कि तुम तो घोड़े और खच्चर की मज़ार बना देते हो, गधे की मज़ार बना देते हो, तोते की मज़ार बना देते हो। इस खच्चर की औलाद को जब मैं हदीस पढ़ रहा हूँ तो ये बीच में खच्चर की औलाद बकर बकर कर रहा है, बकर बकर कर रहा है ये। जब जवाब नहीं बनता है तो गाली देता है। जो पक्की कब्र बनाए, जो पक्की कब्र बनाए उस पर क्या मैंने सवाल किया तो उसका जो पक्की कब्र बनाए, जो मेरी अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बेवकूफ बोले, मैं उस गधे को खच्चर ना बोलूं तो क्या बोलूं? लानत हो तो तेरे पे लानत हो गई। मैंने अकीदा साबित कर दिया अम्मी आयशा से कि हुजूर से सबसे पहले हजरत ज़ैनब ने जाके मुलाकात की। लानत हो जमशेद भाई, मैंने अकीदा साबित किया ना। जमशेद भाई, मैंने अकीदा साबित कर दिया ना। आला हज़रत का अकीदा बयान कर दिया ना मैंने। इसने रसूलों को बोला कि रसूल शहीद होते हैं, इसका अकीदा है। और तमाम मुहद्दिसीन का अकीदा यह है कि रसूल शहीद नहीं हो सकते, मत करो यार, नहीं हो सकते। इंसाफ करो यार। क्या मतलब? अब बताओ मुझे, मत बनो गोदी। ए रिजवान ये बता, जो पक्की कब्र बनाए उसका हुक्म क्या लगेगा? सरफराज ये बता, तुम गोदी मीडिया का काम कर रहे हो। पक्की कब्र बनाने वाले पे हुक्म क्या लगेगा? सरफराज का है क्या ये जमशेद? पक्की कब्र बनाने वाले पे, पक्की कब्र बनाने वाले पे हुक्म क्या लगेगा? सरफराज संगे मरमर की कब्र बनाने वाले पे हुक्म क्या लगेगा? जो ये बात बोल रहा है सरफराज जो पूछा जा रहा है, कब्र संगे मरमर की कब्र बनाने वाले पे हुक्म क्या लगेगा? सरफराज जमशेद भाई, सरफराज पक्की कब्र बनाने वाले पे हुक्म क्या लगेगा? भाई ये इतना सारा झूठ सरफराज पक्की कब्र बनाने वाले पे क्या हुक्म लगेगा? तुमसे अभी सामने से मुखातिब है ना, बोलो ना। सरफराज पक्की कब्र बनाने वाले पे हुक्म क्या लगेगा? पर गाली दे रहा है सरफराज
सरफराज है तुम एक पक्की बार भी कबर टोके नहीं भाई। संगे मरमर की कबर पे कबर बनाने वाले पे हुक्म क्या लगेगा सरफराज? जमशेद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक से बोलो यार, तुम्हारे बीच में पक्की तुम्हारा कबर मालिक बोलने लग रहा है। पक्की कबर बनाने वाले पे सरफराज संगे जमशेद मरमर की भाई गोदी पक्की में कबर दिया। बनाने वाले पे हुक्म क्या लगेगा सरफराज? अरे जवाब दो जाहिल है, आवाज नहीं जा रहा है क्या पक्की सरफराज? कब्रें बनाने वाला जाहिल है, सिद्दीक बिदअती हसन है, भोपाली की पक्की कबर बनाने वाले बिदती हुए। बिदअती बोल जरा है, जोर से बोल। सिद्दीक हसन बिदअती खां की है। तो सारे अहले हदीस अब बिदती हुए बताओ, जो वहाँ साल में जो इकट्ठा मैंने होते पहले हैं। सवाल किया था, बताओ मौलाना मूसा जर्जीस अलैहिस्सलाम बिदती, की कब्र को तुम मौलाना बता रहे हो, मौलाना शहर कौन जर्जीस सा है? बिदती, तौसीफ नहीं उल बता बेईमान, पा रहे हो। फिलिस्तीन फिलिस्तीन मूसा मूसा फिलिस्तीन अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ फिलिस्तीन है? फिलिस्तीन बताओ जगह कहाँ है? फिलिस्तीन फिलिस्तीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? फिलिस्तीन में यहया है। मूसा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? सबकी कब्र मौजूद आदम है। अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ सब है? गूगल पे मार ले सर्च, सब आ जाएगा। गूगल, तुम वही मैंने कहा था कि तो तोते जैसे और तुम घोड़े गूगल के के मुकल्लिद मजारों हो ना, को याद हदीस गूगल रखने से वाले इकट्ठा करते बरेली, हो। तुम गूगल नबियों की हदीस से कब्रों को भूल गूगल गए। गूगल 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 करते हो, जो यही हदीस मैंने कहा इकट्ठा था, करते फिर से वो हो। अल्फाज याद रख लो। हाँ, तोते और घोड़े के मजारों को याद जमशेद रखने भाई वाले, इसने ये जैसे कहा अगर कि पक्की मुरादे कबर मानने बनाने वाले पर तुम बिदती का नबियों की हुक्म तो कब्रों को मौलाना भूल जर्जीस गए। बिदती, तौसीफ उल बेईमान बिदती, मिराज रब्बानी अल्लाह बिदती, ताला ने इनके तमाम अहले अल्लाह हदीसी ताला बिदती, ने जिसने मजार सिद्दीक का हसन भोपाली तस्वुर की पक्की इस्लाम में संगे रखा मरमर ही की नहीं। भोपाल में कब्र बनाई। दमिश्क में इब्ने छमिया की पक्की संगे मरमर की भोपाल में दमिश्क में बनाई। इनके लानत है नसीर इन हुसैन लोगों पे, दहलवी की पक्की कब्र जो इन्होंने बनाई, ये सब के सब लानत है भड़वे जिन लोगों ने चौधे, बनाई, सब लानत के सब है, साले बिदती। इन्होंने इब्ने लानत कसीर की है। पक्की कब्र जो बनाई संगे मरमर की, ये साले बिदती। उन सिद्दीक लोगों को हसन जाहिल भोपाली है की वो भोपाल लोग, में हिंदुस्तान में जो पक्की कब्र बनाई, इसको कब तोड़ेगा? लानत भेज रहा जो है, लोग लानत वह भेज रहा जाहिल लानत है। भेज रहा है उन पर, लानत हो तो कितने अहले हदीस से सब पे लानत हो गई माशाअल्लाह। दमिश्क में तेरे बाप इब्ने तैमिया की पक्की संगे मरमर की जिन कब्र कब लोगों ने तोड़ेगा? बनाया, जिन तेरे लोगों बाप ने ने, बनाया उसके तेरे ऊपर नाजायज लानत हो। बापों ने, तेरे नाजायज बापों ने। बरेली जो कब्र पे ऊपर फूल चढ़ाकर मुरादे मांगते माशाअल्लाह, हैं, जमशेद भाई उनसे ने सब पे कब्र लानत भेज दी। रख दो उसका फोन, जाहिल का हो गया लानत, उसका काम। लानत तो रख दो मैंने उसका फोन, भेजा नहीं यार, अभी रख दो अभी उसका मैंने फोन, रख दो। मैंने लानत नहीं भेजा, मैं उसके भेजो ऊपर पूछ रहा हूँ तुमसे। कह रहा लानत नहीं भेजा। मैं बरेली से पूछ रहा भगाओ इस हूँ। साले जाहिल को, भगाओ इस साले जाहिल को। देखिए सामी निगराम, इन्होंने जो पक्की कब्र अपने बाप दादाओं की बनाई, इस हरामखोर ने लानत भेज दी उसके ऊपर। और फिर कह रहा नहीं मैंने लानत नहीं भेजा, क्योंकि इनके बाप दादाओं ने जो पक्की कब्र बना के रखी है, अपने छमिया की, सिद्दीक हसन भोपाली की, शाह इस्माइल देहलवी की, उसमें लानत नहीं भेजेगा ये हरामी का बच्चा। आप देखिए, ये मैंने लानत भेज रहा है, मैंने हमको लानत नहीं भेजा। हाँ, मैंने अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से ये साबित करके दिया कि उनका भी अकीदा ये कि हुजूर जिंदा हैं, और हुजूर से सबसे पहले मुलाकात हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने की। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक है, मज़ार शरीफ फिलिस्तीन में मौजूद है, और शी अलैहिस्सलाम का जो मज़ार है वो श्रीलंका में मौजूद है। इसी तरीके से तमाम अंबिया के मज़ारात मौजूद हैं। और आप अगर देखेंगे कि काबे के अंदर भी अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है। चलिए ठीक है, वो बहर कैफ लंबी बात हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इस जाहिल ने जो बुखारी की हदीस जो मुतशाबिहात है, इसने ये कहा था कि सहाबा के ताल्लुक से हजरत अबू बकर ने ये कहा कि तुम्हारा अकीदा अगर ये है कि हुजूर की तुम इबादत करते थे, जबकि उसके अंदर ये था कि अगर तुम अगर हुजूर की इबादत करते थे, अगर लगाया यहाँ पे, तो यहाँ इसने झूठ ये बोला था कि सहाबा से ये मुखातिब है कि तुम हुजूर की इबादत करते थे, अगर नहीं लगाया था इसने। अब देखिए, हुजूर की इबादत कोई सहाबी नहीं कर सकता, अगर करता वो सहाबी होता ही नहीं। तो पता ये लगा कि ये हदीस मुतशाबिहात है। इस हदीस को हमें अइम्मा से समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की इबादत अगर कोई सहाबी करता तो वो सहाबी ही नहीं होता, हुजूर पहले ही उसको काफिर कह देते। क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया कि अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो क्या तुम मुझे भी सजदागाह बनाओगे या मेरी भी इबादत करोगे? तो जिस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में कुछ ना अहल लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम का माबूद बना करके उनकी इबादत शुरू की, तो वो तो काफिर हो गए। तो इस हदीस को मुतशाबिहात में रखा गया। जैसे एक हदीस और है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई दरमियानी रात को जागता है तो अल्लाह चौथे आसमान पर आता है। तो ये हदीस भी मुतशाबिहात है। हमारा ये अकीदा नहीं हो सकता कि अल्लाह चौथे आसमान पर आता है, जबकि हदीस के अल्फाज यही है। अच्छा, ये हदीस भी मुतशाबिहात है बुखारी की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी गोया उसने कुफ्र किया। तो इस हदीस को भी मुतशाबिहात में लिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर उसको कुफ्र के ऊपर आप
تنبیہ کرو گے تو آپ تو ہر ایک انسان کو کافر کہو گے کہ وہ ایک وقت کی نماز چھوڑے گا. تو ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ حدیث بھی متشابہات ہوتی ہے، بس عقیدہ بنا لیتے ہیں. اب اس سے کسی محدث نے عقیدہ نہیں بنایا، اور جبکہ اس سے برعکس عقیدے حدیث میں موجود ہے. اب دیکھیے ایک حدیث اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے زیادہ مرتبہ حضور کی زیارت کی روبرو، امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کی روبرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث سے یہ فرمایا کہ میں نے ابھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام مکے کا طواف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پتہ یہ لگا کہ جس طریقے کی زندگی دنیاوی تھی اس سے بہتر زندگی میں وہ ہیں ابھی، اس سے بہتر. کیوں؟ کیونکہ تمام انبیاء جو مسجد الاقصی میں اکٹھا ہوئے تو وہ نبوت کی رفتار سے ہوئے تھے، اور نبوت کی رفتار بہت تیز ہے. اور جب دنیا میں حیات تھے تو جب وہ چلتے تھے تو کئی دن کا سفر ہوتا تھا، سواری سے چلتے تھے. لیکن دنیا سے جانے کے بعد نبوت کی رفتار ان کو ملی، نبوت کی رفتار سے مسجد الاقصی ہر نبی پہنچے. پوری دنیا میں ان کی قبر ہے، کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن پہنچے کہ نہیں پہنچے. تو یہ جاہل کا بچہ مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے، یہ جاہل کا بچہ بیچ میں بڑ کر کے میرا دھیان کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ بھول گیا کہ سامنے جمشید علی قادری ہے کہ جس کا ذہن ایک جگہ رک جاتا ہے تو رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حال ہے ان لوگوں کا. اب بتائیے کہ یہ جاہل کے بچے سنگ مرمر کی پکی قبر بنائے تو جائز، صدیق حسن بھوپالی کی پوجا آ کے کرے سال میں ایک بار تو جائز، ابن تیمیہ کے نام سے مدرسہ بنا دے، یونیورسٹی بنا دے بہار میں تو جائز ہے نا. دمشق میں ابن تیمیہ کی پکی قبر بنا دے تو جائز، نصیر حسین دہلوی کی پکی قبر بنا دے تو جائز، شاہ اسماعیل دہلوی کی ابھی انہوں نے پکی قبر بنائی ہے سنگ مرمر کی تو جائز، اور اگر کوئی بریلوی بنا دے تو شرک اور حرام. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، اور اگر اس کے اندر میری کوئی بات آپ کو ناگوارہ گزرے تو اس کو درگزر کیجیے گا، کیونکہ اس نے اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کی تب مجھے غصہ آیا، اس نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی مجھے تب غصہ آیا، اس نے ہمارے بزرگوں کے شان میں گستاخی کی تب مجھے غصہ آیا. تو غصے میں آدمی جذبات کھو جاتا ہے، اور جو جذبات کھوتا ہے نا یہی ایمان کی دلیل ہوتی ہے. بے شک. تو دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.